Friends, good afternoon. This is Dr. Ashok Gupta from the Federation of Indian Publishers. I welcome you all to this tutorial webinar on virtual book fair. You might be aware that Federation of Indian Publishers, this is the third initiative that we have started. It's absolutely a new initiative from our side, Federation. Earlier, we started long ago, about 30 years ago, Excellence in Book Production. That we have been continuing every year. And main purpose to start that was to improve the overall production standards in the industry. Earlier, if you recall, the standards of Indian books was not very good. And there were no awards which used to be there for the production side. There were several awards on content, on text-based awards. There were several. Even now there are several, but there is no other agency which gives or which awards good production quality. And because of these awards, I think I can say with 100% certainty that now Indian books can match with the best in the world. And you will find Indian books along with other major international publishers' books in Frankfurt Book Fair, in London Book Fair, in Book Expo. And the second event which we started, and that was with the ITPO, the Delhi Book Fair. And now this is our third initiative, virtual book fair. During pandemic, we realized that we must do something for the industry. So we thought of this idea, virtual book fair. That is why then we tied up with one company, Pragati E. They are the technology partners with us. And we started this new initiative. And this is the second attempt from our side. And we are hopeful that we will be able to make some niche or some new goodwill under this new initiative. Initially, there may be some hiccups, but later on, we are quite hopeful that we will be able to find our niche area where I think virtual book fair will be able to have better advantages than physical book fair. We are quite hopeful that people, the publishers, would be launching their new titles under this arrangement. Only new titles, so that at the moment there is no other event or fair where new titles could be showcased. I think this we will be able to develop gradually to promote new titles in the not only in India but outside India also, because the reach is enormous. Now coming to this tutorial, I would like you to just make this session lively and interactive. If you have any questions, if you face any problems in uploading any titles or any issues regarding banners or some audio visual presentation, you have to ask. And our Pragati E team is there and they are quite cooperative. They will be able to solve each and every question you may have. I would just request you to make it lively and ask questions. Do not let it not be just one-sided. They are just speaking and you are just listening. And third thing, what I would like you to start promoting this fair to your customers, because from the Pragati team as well as from the Federation, we are doing at our level the promotion, whatever addresses, whatever emailers we can send. But every publisher has its own address master. I think if you start promoting this fair, I think that will give a major boost to this fair as well as to the industry. Now I hand over the floor to the Pragati E team. Sharat, I think now you can start the session. Hello. hello. हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर अशोक गुप्ता। थैंक यू डॉक्टर अशोक गुप्ता। हाँ जी, तो आप सबका स्वागत है इस ट्रेनिंग सेशन में सेकंड वर्चुअल दिल्ली बुक फेयर के लिए। आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली एग्जिबिटर्स के लिए एक ट्रेनिंग करेंगे जिसमें आपको हम बताएंगे आप अपना स्टॉल कैसे सेटअप करें और आप अपना स्टॉल कैसे देख सकते हैं, और साथ में हमारी एग्जीबिशन के बाकी फीचर्स किस किस तरीके से दिखते हैं और प्लेटफॉर्म का फ्रंट व्यू, हम आपको ये चीज़ें आज दिखाएंगे इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आपके कोई भी सवाल हैं जो आप हमारे ट्रेनिंग शुरू करने से पहले पूछना चाहते हैं,
प्लीज़ अभी पूछ लीजिए और उसमें हम फिर ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ठीक है जी, तो मैं अभी अपने कॉलीग भूषण को दूंगा, एंड भूषण आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन जहां पर कि एग्जिबिटर स्टॉल सेटअप का प्रोसेस और उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, और उसके अलावा हमारा प्लेटफॉर्म कैसा दिखता है, उस पर क्या क्या चीजें दिखेंगी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बारी एंड दिखाता हूँ आपको कि हाउ द प्लेटफॉर्म विल लुक लाइक, प्लेटफॉर्म कैसा दिखेगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग अपना स्टॉल कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट शेयर। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yeah, we can see you. हाँ जी सर, देख पा रहे हैं। Yeah, visible. दिस इज द लॉबी एरिया। ये जैसे ही आप दिल्ली बुक फेयर के लिंक पर क्लिक करेंगे, कोई विजिटर क्लिक करेगा, सबसे पहले वो लैंड करेंगे लॉबी एरिया में। तो जो लॉबी एरिया है दिल्ली बुक फेयर का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये अभी फाइनल बटन नहीं है, दिस इज अंडर क्रिएशन, डिपेंडिंग ऑन कौन कौन ज्वाइन करता है फेयर को। और सो वंस दिस इज क्रिएटेड फाइनली, अभी जो आप बैनर्स एंड एवरीथिंग देख रहे हैं, दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। तो ये सब अभी चेंज होंगे, बट दिस इज द टोटल आउटलुक ऑफ द लॉबी एरिया। तो ये लॉबी एरिया आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें मल्टीपल लिंकेजेस होंगी जो आपको दिल्ली बुक फेयर के अंदर ही अलग अलग जगहों पर लेके जाएंगी। जैसे कुछ लिंकेजेस आपको एग्जीबिशन हॉल के अंदर लेके जाएंगी, कुछ लिंकेजेस आपको जो अरीना है जिसके अंदर प्रगति विचार होएगा और जो पब्लिशर्स की वेबिनार्स हैं वो होंगी, उनके अंदर लेके जाएंगी। एक लिंकेज आपको हेल्प डेस्क के अंदर लेके जाएगी, जिसके अंदर लोग जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। एक लिंकेज आपको पवेलियंस में लेके जाएगी, जो होंगे हमारे मेंटल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी के पवेलियंस, जिसके जो थीम्स हैं इस बारी की दिल्ली बुक फेयर की। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपको यहाँ पर बैनर्स और क्रिएटिव्स दिख रहे हैं, ये सारे स्पॉन्सर्स के होंगे, जो हमारे करंट स्पॉन्सर्स हैं फॉर द दिल्ली बुक फेयर 2021। नाउ इसके बाद मैं आपको स्टॉल का डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ कि स्टॉल का डिज़ाइन कैसा दिखेगा। तो जो स्टॉल है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। स्टॉल के अंदर आपको 2 बैनर्स की प्लेसमेंट मिल जाएगी, लेफ्ट और राइट पे, और उसके अलावा आपको 2 बैनर्स की प्लेसमेंट ऊपर भी मिल जाएगी जो 200 बाय 200 के होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक लोगो भी मिल जाएगा जो आप ऊपर प्लेस कर सकते हैं। बीच में आपको वीडियो प्लेस करने का एरिया मिल जाएगा, और ऊपर लेफ्ट में आपका नाम दिखाई दे जाएगा एग्जीबिटर का, एंड राइट साइड में जिन कैटेगरीज में आप लिस्टेड होंगे, जिन भी बुक्स की कैटेगरीज में आप लिस्टेड होंगे, वो दिखाई दे जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको स्टॉल की फंक्शनैलिटी भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी। तो जो स्टॉल की फंक्शनैलिटी है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। 1 सेकेंड।
जी सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा था। हाँ, तो ये जो स्टॉल में है आपको कुछ इस तरीके से फीचर्स मिल जाते हैं। यू विल गेट एक बैनर प्लेसमेंट आपको इधर मिल जाएगा सेकंड पेज पर। आपका एक बड़ा बैनर रहेगा 1920 बाय 700 पिक्सल्स का। उसके अलावा आपको एक चैट की फंक्शनैलिटी मिल जाती है जिसमें आपको एक विजिटिंग कार्ड का भी फीचर रहेगा। तो कोई भी विजिटर आता है तो वो आपका कार्ड सेव कर सकता है, आपके साथ कार्ड एक्सचेंज कर सकता है। आप यहाँ पर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना वेबसाइट लिंक डाल सकते हैं। इसके अलावा चैट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे चैट विद अस ऑप्शन के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से विजिबल होंगे। आपके पास एक ऐड टू कार्ट और एक बाय नाउ का ऑप्शन रहेगा। अभी आपको बाय नाउ का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इवेंट लाइव नहीं है, सिर्फ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जो आपके टाइटल की इमेजेस होंगी वो कुछ इस तरीके से आप क्लिक करके उनको एनलार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एडिशनल इमेजेस और वीडियोस डालने का भी ऑप्शन रहता है अगर आप वो डालना चाहेंगे तो। अभी जो मैं आपको करंट स्टॉल दिखा रहा हूँ इसके अंदर इमेजेस और वीडियोस प्रोडक्ट्स के लिए एडिशनल नहीं डली हुई हैं। आपके पास एक ब्रोशर डालने का भी ऑप्शन रहता है इन्हीं तीनों में। तो देयर इज़ वन एक्स्ट्रा इमेज ऑप्शन, एक एक्स्ट्रा वीडियो का ऑप्शन रहता है और एक एक्स्ट्रा ब्रोशर का ऑप्शन रहता है। इसके अलावा आपकी जो शोकेस वीडियो है वो आपको यहाँ पर भी एक सेक्शन में दिखाई देती है। इसके अलावा एक छोटा सा अबाउट अ सेक्शन रहता है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास सोशल मीडिया के लिंक्स रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। आपके पास यहाँ पर व्हाट्सएप का भी ऑप्शन रहता है जो आप अगर अपडेट करते हैं अपनी स्टॉल में तो आपको दिखाई देता है। मैं आपको किसी दूसरे स्टॉल में दिखा देता हूँ एक बार व्हाट्सएप का लिंक। वन मोमेंट। तो जो व्हाट्सएप का लिंक है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं वो आपको आपकी व्हाट्सएप की ऐप में ले जाता है। तो कोई भी अगर विजिटर आएगा और आपसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहेगा तो वो आके आपका व्हाट्सएप का बटन दबा के ऐसे इस तरीके से आपसे व्हाट्सएप पर चैट कर सकता है। उसका मैसेज आपको डायरेक्टली फिर व्हाट्सएप पर आ जाया करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक शेड्यूल मीटिंग का भी फीचर रहता है जिसमें आप वीडियो मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो कोई भी विजिटर आता है वो आपके साथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवेंट वीडियो मीटिंग शेड्यूल कर सकता है। तो उसमें उसको क्या करना रहेगा कि दे विल हैव टू सेलेक्ट द डेट जिस दिन पे वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं और वो अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर उनको टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो जिस टाइम पर वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो वंस दे सेलेक्ट द टाइम स्लॉट एंड द डेट वो बुक स्लॉट का बटन दबा के आपसे मीटिंग कर सकते हैं। सो ये कुछ फीचर्स रहते हैं आपके पास स्टॉल में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि आप अपना स्टॉल सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो अपना स्टॉल सेटअप करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी खोलना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे एग्जीबिटर्स हैं उन सब लोगों को एक दिल्ली बुक फेयर से इनविटेशन रिसीव होगा। सो द इनविटेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। जैसे आप ये मेल देख रहे हैं यहाँ पर, प्रगति इनविटेशन फॉर दिल्ली बुक फेयर 2021। तो ये इनविटेशन आपके प्राइमरी टैब में भी आ सकता है, आपके प्रमोशंस टैब में भी आ सकता है। सो जैसे ही आप इस इनविटेशन पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पूरा मेल दिखाई देगा, थैंक यू फॉर बिकमिंग एन एग्जीबिटर एट दिल्ली बुक फेयर 2021। देन आपके पास ये एक साइनअप प्रोसेस के लिए लिंक रहेगा जिसको क्लिक करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये नोट दिया है ना, ये नोट दे दीजिए, इसके साथ क्या बना के भेज दीजिए। तो मेरा ये, हाँ आप पता क्या करिए, इसमें म्यूट म्यूट है, आ रही है।
हेलो हेलो हाँ जी सर। You are audible. जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, Your voice is cracking. Your voice is cracking. Yeah. आप कैन यू हियर मी नाउ, एम आई ऑडिबल? आप मैं बेटर साउंड कर रहा हूँ क्या? जी जी Better जी. sound, but बहुत दूर से आ रहा है sound. दूर से आ रहा है अभी, इज इट बेटर नाउ? It's better, हाँ better. ओके, तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज खुल जाएगा app.pragati.com, जिसमें आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो लेट मी क्रिएट अ पासवर्ड। जैसे ही मैं ये पासवर्ड क्रिएट करूंगा, मेरे पास ये लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप पेज ध्यान रखिए, app.pragati.com इज द लिंक। अब इसके ऊपर आप जो आपने ईमेल एड्रेस जिस पर इनवाइट आया है और जो ईमेल एड्रेस का आपने जो अभी पासवर्ड क्रिएट किया था, आप उससे लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास क्रिएट स्टॉल का ऑप्शन आएगा लेफ्ट में। तो आप देखिए एग्जीबिशन स्टॉल्स के नीचे ये क्रिएट स्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा। आप इस पर क्लिक करें, क्रिएट स्टॉल। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. जी जी जी. तो ये क्रिएट स्टॉल का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम आपसे बोलेगा कि आपको अपना एग्जीबिटर प्रोफाइल अपडेट करना है। तो एग्जीबिटर प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सबसे पहला आप काम करेंगे, अपना कंपनी का नेम डालेंगे। तो मैं अपना कंपनी का नेम इधर डालता हूँ। देन आप अपना अबाउट अस डालेंगे, अबाउट द कंपनी, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। उसके बाद आप एक 100x100 का लोगो अपनी कंपनी का अपलोड करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं एक 100x100 का लोगो अपलोड करता हूँ। तो ये मैंने एक 100x100 का लोगो अपलोड कर दिया है। इसके बाद आप अपने कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालेंगे। तो मैं कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट पर्सन की डेजिग्नेशन डाल देंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन की डेजिग्नेशन डालने के बाद आप कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। तो जैसे मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करना चाहेंगे, या तो आप अपना मोबाइल नंबर दिखा सकते हैं स्टॉल के पेज पे, या आप अपना लैंडलाइन नंबर दिखा सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन विच नंबर यू वांट टू शो, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप म्यूट हो गए हैं. सॉरी, तो मैं मोबाइल नंबर दिखाना चाहता हूं, तो मैं मोबाइल नंबर दिखाऊंगा। आई विल क्लिक ऑन डिस्प्ले मोबाइल नंबर ऑन स्टॉल पेज। इसके बाद मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा यहाँ पर। तो आपको अपना भी ईमेल एड्रेस डालना होगा। इसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पर। देन आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ये इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, आपकी एग्जीबिटर प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। Again जैसे you ही are एग्जीबिटर audible. Yeah. जैसे ही एग्जीबिटर प्रोफाइल आपकी क्रिएट होएगी, ये लिखा आएगा प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको दोबारा से एग्जीबिशन स्टॉल्स पर क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट स्टॉल। तो आप क्रिएट स्टॉल पर क्लिक करेंगे तो नाउ आपके पास सेटअप आएगा जिसमें आप अपना स्टॉल बना पाएंगे। Hello. आवाज नहीं आ रही सर. Not visible, sir. The screen is also not visible. I think he has logged out. He should log in again, I guess. Hello. 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 Yeah, he's back now. He's back. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इश्यूज। एक्चुअली आज ऑफिस में बहुत इंटरनेट का कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
बट आई एम स्टिल शोइंग यू। तो जैसे आपने क्रिएट स्टॉल पर क्लिक किया, कैन यू ऑल हियर मी? Yeah, your voice is echoing. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. It's okay, sir. Please continue. Yes, sir. नाउ? Yeah, please go ahead. Please go ahead. क्या आप लोगों को मेरी वॉइस ऑडिबल है? हेलो, जी जी Yeah, जी yeah. जी It is जी perfect. Yes, sir. Yes, sir. मेरे को क्यों नहीं? ऑलराइट, ओके। सो जैसे ही आप क्रिएट स्टॉल पर एग्जीबिटर प्रोफाइल बनाने के बाद दोबारा क्लिक करेंगे, आपके पास स्टॉल क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द कैटेगरी सेक्शन और आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ 12-13 कैटेगरीज हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी हैं। तो इन कैटेगरीज में से आप कुछ कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं अभी जनरल ट्रेड बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ, हायर एजुकेशन बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ, STM बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, वो दोबारा लॉगिन कर रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा। So can we select multiple categories in this case? You can select up to 3 categories. Okay. हेलो, एम आई ऑडिबल? या Not audible. राइट, ओके। सो आप यहाँ पर 3 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन 3 कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना लोगो अपलोड करना है 300 बाय 300 पिक्सल्स में। तो जो आपने पहले एक लोगो अपलोड किया था वो था 100 बाय 100 में। अब ये दूसरा आपको लोगो अपलोड करना है 300 बाय 300 पिक्सल्स में। तो मैं एक 300 बाय 300 की इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, आपको फिर डन का बटन दबाना है। डन का बटन दबाने के बाद आपका ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका ऑलरेडी जो आपने एग्जीबिटर प्रोफाइल में डाला था वहाँ से सिस्टम पिक कर लेगा। कंपनी नेम भी आपका वहीं से पिक कर लेगा ना। अगर आपको अपनी कंपनी का नाम और स्टॉल का नाम डिफरेंट रखना है तो आप यहाँ पर एक स्टॉल का नाम डिफरेंट रख सकते हैं और जो इसके नीचे टिक है वो दबा सकते हैं टू मेक दैट नेम विजिबल ऑन द स्टॉल। अब उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि है स्लग का। तो स्लग का क्या मतलब है, जैसे जो प्रगति पर दिल्ली बुक फेयर होने वाला है उसके ऊपर जितने भी स्टॉल्स रहेंगे सबका एक यूनिक लिंक रहेगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो pragati.com/dbf2021 ये आपका इवेंट का लिंक रहेगा, बट जो आपके स्टॉल का लिंक है वो रहेगा pragati.com/dbf2021/ जो आप ये स्लग लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरा नाम ABC पब्लिशर है तो मैं यहाँ पर डालता हूँ ABC पब्लिशर्स 1-2। तो मैं ऐसे करके अपना स्लग बना देता हूँ। तो जो मेरा स्टॉल का पर्सनल लिंक बन जाएगा जो मैं अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ सबके साथ शेयर कर सकता हूँ वो बन जाएगा pragati.com/dbf2021/ABC publisher 1-2। तो जैसे आप ये स्लग डाल दोगे अपने स्टॉल में तो दिस इज अ लिंक दैट यू कैन शेयर विद ऑल द पीपल दैट यू आर इन्वाइटिंग टू योर स्टॉल और टू द बुक फेयर। मैं आपको एक बार चैट में लिख के भी दिखा देता हूँ कि व्हाट आई मीन बाय द स्लग लिंक। जस्ट 1 मोमेंट। सो ये आपका इवेंट का लिंक रहेगा pragati.com/dbf2021। क्या आप लोग सब मेरे चैट में मैसेज पढ़ पा रहे हैं? जी। तो ये आपका इवेंट का लिंक है। अब जो मैं आपको यहाँ पर स्लग दिखा रहा हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर ABC पब्लिशर 12-1-2 डाला तो जो आपका पर्सनल स्लग लिंक बनेगा जिसको शेयर करके लोग डायरेक्टली आपके स्टॉल पर आ सकते हैं वो ऐसे बनेगा pragati.com/dbf2021/ABC publisher 1-2। क्या आप लोग मेरा मैसेज देख पा रहे हैं? No, sir. Yeah. Yeah, we can see in the chat. It's in chat. जी, मैंने आपको चैट में भेजा है pragati.com/dbf2021/ ये जो ABC publisher स्लग मैंने यहाँ पर डाला वो मेरा उसके बाद का लिंक बन गया। तो ये एक आपका प्राइवेट पर्सनल लिंक हो जाएगा जो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली आपके स्टॉल पर आ पाए।
Means if we want to create a post for general publicity, we can do it through this link. सर फॉर दिस ये लिंक है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉल नंबर्स अलॉट होते थे आपको इन पब्लिक सॉरी फिजिकल फेयर्स, जिससे पता लगे कि आपको किस स्टॉल में किस सेक्शन में जाना है। ये है कि अगर आपको किसी को डायरेक्टली दिल्ली बुक फेयर की जगह आपको अपने स्टॉल पर ही लेके आना है पहले, तो जैसे और मेरा एक और क्वेश्चन था इसी के रिलेटेड था कि लास्ट टाइम हमें एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिला था 2020 में, जिसको हमने अपने पोस्ट पे शेयर किया था सोशल मीडिया में भी और आप बाकी पब्लिसिटी के लिए भी। जी तो वो वाला जो रजिस्ट्रेशन लिंक है प्रगति ई का 2021 के लिए, वो पेज तैयार हो गया है कि वो भी वेटिंग में है? नहीं सर, वो पेज तैयार है, हम आपके साथ अभी ग्रुप पे शेयर कर देंगे। उस पेज का लिंक है events.pragati.com/dbf2021। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ। जी वो एक बार दिखा दीजिए ताकि हम उस पे काम करते थोड़ा सा। जी, तो यहाँ पर आप जितने भी विजिटर्स हैं उनको बुलाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे आपने एज एग्जीबिटर भी रजिस्टर किया होगा इस पेज पर, आई बिलीव उधर ही रजिस्ट्रेशन फॉर विजिटर्स भी ओपन है, शुरू से ही ओपन रही है। जी परफेक्ट सर, मैं इसी के बारे में पहले भी डिस्कशन कर रहा था, तो देयर वाज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस। जी, तो आप यहाँ पे पर्पस देख पाएंगे कि यहाँ पर विजिटर, एग्जीबिटर या स्पॉन्सर, तो जो विजिटर रजिस्ट्रेशन है सर वो आप इस पेज से करा सकते हैं। इस पेज का लिंक अभी मैं शरद जी को बोलूंगा, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे आपके साथ, सबके साथ। परफेक्ट सर, थैंक यू। क्या सर? तो आप जी जी This link like events.pragati.com/2021 shall it go? ये क्या हम लोग के इनविटेशन पे ही जाएगा ताकि visitors can click on it and they can log in? जी मैम, तो ये लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए है। वैसे इस बार का जो दिल्ली बुक फेयर है वो ओपन टू ऑल है, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। बट इन केस बिफोर द इवेंट आपको किसी को रजिस्टर करवाना है ताकि उनको इनवाइट चला जाए जब दिल्ली बुक फेयर लाइव हो जाए, तो आप इसके थ्रू करा सकते हैं ताकि उनके पास एक नोटिफिकेशन चली जाए हमारे एंड से दैट दिल्ली बुक फेयर इज लाइव, आप आए अटेंड कर लें, और आप अपनी एंड से भी भेज सकते हैं वो सेम चीज़। वन मोर थिंग, मेरा एक कंफ्यूजन हो रहा है, स्लग में जो लिंक हम लोग लाइक पुटिंग करेंगे वो क्या हम लोग को बना करना पड़ेगा? आई एम सॉरी मैम, आप एक बार रिपीट करेंगे? स्लग में आप जो बोल रहे हैं एक लिंक जाएगा, वो लिंक वो क्लियर नहीं हुई है, कैन यू प्लीज रिपीट इट वंस? मैं बता देता हूँ मैम। आपकी पब्लिशिंग हाउस का नाम क्या है मैम? आई एम फ्रॉम भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। भारती भवन पब्लिशर्स। तो आपका ये एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से भारती भवन पब्लिशर्स हैं, तो मैं स्लग में लिखता हूँ भारती भवन पब्लिशर्स, ठीक है मैम। तो आपका स्लग हो गया भारती भवन पब्लिशर्स, और जो आपकी स्टॉल का लिंक होएगा वो हो जाएगा, एक बार मैं आपको चैट में भेज देता हूँ, वो हो जाएगा pragati.com/dbf2021/भारती भवन पब्लिशर्स। आपको दिख रहा है, मैंने आपको चैट में शेयर किया है जस्ट अभी। So this link we can use in the slug, right? जी मैम, तो आपको स्लग में सिर्फ इतना ही डालना है जो स्लैश के बाद का पोर्शन है। जैसे मैंने सिर्फ भारती भवन पब्लिशर्स डाला है ना मैम, pragati.com/dbf2021 तो स्टैंडर्ड है, उसके बाद का आपको जो यूनिक रखना है वो आपको डालना है नाम के हिसाब से। सर इसमें एक ये पूरा लिंक कहीं पे शेयर कर सकते हैं क्या? जैसे स्लग में आपने डाला है जी, तो जो स्लग में पूरा जैसे पहले का pragati.com dbf, ये पूरा लिंक कहीं पे शो हो सकता, ताकि हम लिंक कॉपी करके ही हम शेयर कर दें, ताकि कोई विजिटर जो है वो डायरेक्ट हमारी स्टॉल पे चला जाए। ऐसा कोई लिंक बन सकता है क्या स्लग में? जी सर, ये स्लग वही लिंक बनाने के लिए मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जी सर हम जब आप ये सबमिट करेंगे ना तब वो लिंक क्रिएट होगा। सर मैं समझ गया, मैं अपनी टेक्निकल टीम से पूछ लेता हूँ कि वो यहाँ पर लिंक दिख सकता है, वरना पॉसिबली है तो वो लिंक दिखा दें यहाँ पे, ताकि कॉपी करके हम शेयर कर दें अपने विजिटर्स को। समझ गया सर, मैं ये पूछ लेता हूँ, वरना हम जितने भी लिंक्स होंगे वो जो एग्जिबिटर का ग्रुप है उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है सर, वो बेटर है, सबके लिए सही। हाँ जी, अगर होगा हम कोशिश करेंगे हम दोनों कर दें कि यहाँ भी डिस्प्ले हो जाए, वरना हम एग्जिबिटर ग्रुप में तो डाल ही देंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों के पास लिंक आए वो अपने ट्रेड सर्कल्स में, वो अपने ग्रुप्स में, वो अपने तरीके से आप प्रमोट करके लोगों को डायरेक्टली अपने स्टॉल पे ला सकते हैं। तो एक तो है आप लोगों से लिंक शेयर करें जो हो pragati.com/dbf2021, उसमें तो जो भी विजिटर आएगा वो प्लेटफॉर्म पे आएगा और फिर आपका स्टॉल ढूंढेगा। आप उसको डायरेक्टली अपने पब्लिशिंग हाउस का जो आपने स्लग डाल के जो URL बनाया है
आप एग्जैक्टली वो यूआरएल शेयर कर सकते हैं जिससे जो भी विजिटर आएगा, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी भारती भवन पब्लिशर्स वाला लूँ और अगर वो अपना जो स्लग है वो भारती भवन पब्लिशर्स बनाते हैं, वो कुछ और भी डाल सकते हैं, वो भारती भवन पब्स भी डाल सकते हैं, भारती भवन भी डाल सकते हैं, जो भी वो डालें। तो आप जब लिंक भेजेंगे लोगों को तो pragati.com/dbf2021/भारती भवन पब्लिशर्स या भारती भवन पब जो भी आपने डाला है वो भेजेंगे। Got it, sir. Got it. Got it, sir. थैंक यू। ठीक है सर। तो मूविंग ऑन, जैसे आप ये डाल लेंगे, इसके बाद अगला ऑप्शन है आपके पास असाइन यूज़र फॉर चैट। तो आपको इस पर क्लिक करके एक यूज़र असाइन करना पड़ेगा जो आपकी चैटिंग के लिए लाइव रहेगा। तो फिलहाल मैं अभी ये वाला कर देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपको, जो आपको मैंने स्टॉल दिखाया था उसके बीच में जो वीडियो आएगा, जो वीडियो एरिया है, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी। जी। तो जो आपका वीडियो आएगा स्टॉल के बीच में, उसके लिए वीडियो का यूआरएल है। तो इसके अंदर जाता है यूट्यूब का एम्बेड यूआरएल। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ कैसे लेना है। आपकी कोई भी जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड होगी, आप उस पर जाएं। अगर कोई वीडियो नहीं है तो भी चल सकता है सर। अगर किसी का कोई वीडियो नहीं बना रखा है कोई पब्लिकेशन हाउस में, तो वो कोई इश्यू तो नहीं होगा इसमें, अगर नहीं है वीडियो है तो कोई? नहीं सर, अगर आपके पास कोई वीडियो नहीं है तो कोई इशू नहीं होगा। ये ऑप्शनल है अगर आपको वीडियो डालना है कि नहीं डालना। अगर वीडियो नहीं होगा तो एक स्टैंडर्ड डीबीएफ का वीडियो वहाँ पर प्ले हो जाएगा दिल्ली बुक फेयर का। जी सर। तो मैं जैसे लेट से मैं एक हमारे अपने ही वीडियो पर चला जाता हूँ। जैसे ये वीडियो है, अगर इस वीडियो को मेरे को उधर डालना है अपने स्टॉल पर, तो मैं यहाँ पर ये शेयर का बटन दिखाई दे रहा है आप सबको, इस पर मैं क्लिक, इस पर क्लिक करने के बाद मैं ये एम्बेड का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा। तो आप इधर ये ध्यान से देखें, यहाँ पर ये कोड स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन कोड्स के बीच में ये एग्जैक्ट लिंक मैं कॉपी करूँगा और ये कॉपी करने के बाद मैं उधर पेस्ट कर दूँगा। तो ये यहाँ से कोड स्टार्ट होंगे और इधर एंड हो रहे हैं कोड्स, आप देख पाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा लिंक है। इसको कॉपी करके मैं इधर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसको एम्बेड लिंक बोलते हैं। एंड ये एग्जैक्ट इधर से कॉपी होता है। आप ये देखें, यहाँ से कोड स्टार्ट है, एसआरसी के बाद जो इक्वल टू कोड के बाद ये एच से स्टार्ट है, और ये इस कोड से पहले इस ओ पे एंड होता है। आपका कैरेक्टर शायद अलग हो सकता है, बट एक कोड से पहले एंड होता है। तो आपको ये कॉपी करना है लिंक। ये कॉपी करने के बाद आप यहाँ पेस्ट कर देंगे तो आपकी वीडियो शो हो जाएगी। इस बॉक्स में अगर आप, सॉरी टू इंटरप्ट, कैन यू रिपीट इट वंस द फुल प्रोसेस? जी मैम, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये आपकी यूट्यूब वीडियो है। हाँ। यूट्यूब वीडियो पे यहाँ शेयर का बटन है। शेयर के बटन के बाद ये एम्बेड का बटन है। राइट। एम्बेड के बटन के बाद आपके पास ये एसआरसी दिख रहा है आपको लिखा हुआ, इक्वल टू दिख रहा है लिखा हुआ, कोट भी दिख रहा है आपको यहाँ पर। कोट के बाद से जो लिंक स्टार्ट है और दूसरे एक कोट के एंड होने तक, आप देख पा रहे हैं हाँ। ये कोट के एंड होने तक बस इतना ही लिंक है। इसको आप कॉपी कर लें और इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपका YouTube वीडियो का लिंक चला जाएगा जिससे आपकी वीडियो हो जाएगी इंस्टॉल पर। नाउ जो नेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर आप कोई अगर कीवर्ड डालना चाहते हैं अपनी स्टॉल से रिलेटेड, तो आप वो कीवर्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल हिंदी बुक्स, इंग्लिश बुक्स, कुछ अगर आप कीवर्ड डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। स्पेस डाल सकते हैं उनमें, जैसे लेट्स सपोज किड्स बुक्स, सेल्फ स्टडी, ऐसे करके स्पेस आ जी सकती है? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं सर आप। किड्स बुक्स ऐसे कॉमा करके, कॉमा करके कुछ भी। ओके फाइन। जी जी, ठीक है सर। जी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, वर्ड लिमिट नहीं है ना? मैम इसमें कुछ टैग्स की लिमिट होएगी, तो यू कैन नॉट पुट मल्टीपल टैग्स। आई विल एक बार चेक विद द टीम। आई थिंक कुछ 500 कैरेक्टर्स की लिमिट रहती है इसके अंदर। सो यू कैन पुट मे बी 10-15 टैग्स इन हियर, बट या उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अपना हेडर बैनर अपलोड करने का। तो आप इस पर क्लिक करें और 1920 बाई 700 पिक्सल्स का एक हेडर बैनर अपलोड कर दें। ये हेडर बैनर अपलोड करने के बाद आपके पास 4 और बैनर एरियाज हैं स्टॉल पे। तो एक है लेफ्ट का टॉप स्टॉल बैनर, एक है राइट का टॉप स्टॉल बैनर। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं।
तो जो ये टॉप के बैनर्स हैं लेफ्ट और राइट के, ये लेफ्ट का टॉप बैनर है, राइट का टॉप बैनर है, और जो नीचे के बैनर हैं वो मेन बैनर्स हैं लेफ्ट के और राइट के। तो ये 4 बैनर्स का ऑप्शन रहता है आपके पास स्टॉल में, और जो लोगो आएगा आपका वो यहाँ पर आएगा ऊपर, वीडियो इधर बीच में आएगी। तो ये आप लेफ्ट का टॉप स्टॉल बैनर अपलोड कर दें 200 बाई 200 पिक्सल्स में, राइट का टॉप स्टॉल बैनर अपलोड कर दें 200 बाई 200 पिक्सल्स में, और लेफ्ट का बैनर अपलोड कर दें 720 बाई 400 पिक्सल में, और राइट का बैनर अपलोड कर दें 720 बाई 400 पिक्सल में। वो हेडर बैनर कहाँ पे डिस्प्ले होगा? सर जो हेडर बैनर डिस्प्ले होगा वो स्टॉल के सेकंड पेज पे डिस्प्ले होता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था एक क्लेवर फॉक्स पब्लिशिंग के स्टॉल में, वो डिस्प्ले होता है स्टॉल के सेकंड पेज में। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर कोई स्टॉल खुला हुआ है तो। नहीं अभी भेजूंगी, अभी कुछ नहीं दिया। तो इसका प्रीव्यू कैसे देखना है एक बार बताएंगे? सर एक बार आप स्टॉल सेटअप कर लेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा। अभी एक्चुअली कुछ बैकएंड में काम हो रहा है, तो आपका प्रीव्यू आपको बाय मंडे तक दिखाई देगा। उस टाइम तक सजेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग अपना स्टॉल पूरा प्रोडक्ट सब कुछ अपलोड करके, once that is done everybody has completed their stall, so by Monday we will be able to show you the preview as well. ओके सर, अभी अगर पॉसिबल है तो एवरग्रीन का एक बार ओपन करके देख लीजिए, शायद आपके एंड पे होगा। परेशानी हो रही है, आज इनका वेबिनार ठीक से नहीं चल रहा, बीच में Not possible. मैं आपको separately get on a call और मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम सर। ठीक है सर, so moving on, आपने एक बार ये स्टॉल बैनर, उसके बाद आपके पास नीचे स्टेटस का ऑप्शन रहता है जिसमें आपको एक्टिव ही रखना है अपनी स्टॉल को। ओके, Once that is done, you have to click on create. तो जैसे ही आप create पे क्लिक करेंगे, the stall will process और आपका स्टॉल अपलोड हो जाएगा। So let's wait for the stall to upload. ऑल्सो मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप सब लोगों को कि आप मेक श्योर करें कि जो पिक्सल साइजेस यहाँ पर मेंशन्ड है वो आप एग्जैक्ट पिक्सल साइजेस में ही अपने बैनर्स अपलोड करें, अदरवाइज द सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट। तो जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बैनर्स, क्योंकि जो स्टॉल का डिज़ाइन है वो सब एक तरीके से बनाया गया है जो अकोमोडेट इन बैनर्स को ही करेगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपके बैनर्स आर इन द राइट साइजेस, ताकि आपको स्टॉल क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये असाइन यूजर फॉर चैट जो है, इसमें ईमेल आईडी हम लोग अपना कंपनी से किसी का भी डाल सकते हैं क्या? जी सर, तो ये असाइन यूजर फॉर चैट में आपके पास आप और यूजर्स 1 और 2 असाइन कर सकते हैं मोर। तो अभी जब हम आगे चलेंगे स्टॉल के सेटअप में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप और यूजर्स भी ऐड कर सकते हैं अपने स्टॉल के अंदर। जी। तो वन क्वेश्चन, अगर हम लोग कोई मतलब इमेज अपलोड करते हैं फॉर बैनर्स, इफ यू वांट, क्या बाद में चेंज कर सकते हैं? जी मैम बिल्कुल, जैसे 3 दिन का एग्जीबिशन है राइट, तो आप अगर आप चाहें तो आप एक दिन पर अलग इमेज, दूसरे दिन पर अलग इमेज, तीसरे दिन पर अलग इमेज बिल्कुल रख सकते हैं। वो आपको क्या करना पड़ेगा कि बिफोर द फेयर बिगिंस, सुबह के टाइम पे आपको वो इमेज चेंज करना पड़ेगा, या मे बी लाइक रात को जाते समय आपको वो इमेज चेंज करना पड़ेगा। जी, सो वो चेंज करने का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा। ये बैकएंड की जो डिटेल्स हैं, जो आपकी लॉगिन है, ये हमेशा वर्किंग रहेंगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवेंट। तो जैसे आपका स्टॉल क्रिएट हो जाएगा, आपके पास मैसेज आएगा सेव्ड स्टॉल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो वंस दैट इज डन, मैं आपको अब दिखाता हूं कि आप प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। सो प्रोडक्ट्स बनाने के 2 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। एक रहता है कि आप सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप बल्क में प्रोडक्ट्स अपलोड कर दें। तो मैं आपको पहले सिंगल वाला ऑप्शन दिखाता हूं कि सिंगल वाला ऑप्शन कैसे वर्क करता है। तो आप एग्जीबिशन स्टॉल्स के नीचे क्रिएट प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्रिएट प्रोडक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन में आप पहले अपने प्रोडक्ट का SKU कोड डालें, अगर आपके पास कोई SKU कोड है तो। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर 1 2 3 4 डाल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर 1 डाल देता हूँ।
इसके बाद टाइटल डालें अपना। सर SKU की जगह ISBN लग सकता है सर? बिल्कुल सर, आप ISBN भी डाल सकते हैं। एक बार मैं कैरेक्टर चेक करवा लूंगा यहाँ की, बट ठीक है। आई बिलीव आप ISBN यहाँ पर डाल सकते हैं जी। यू कैन पुट, लास्ट टाइम यही डाला था सर हमने। ठीक है सर, या यू कैन पुट योर ISBN इन प्लेस ऑफ SKU को। जी उसके ठीक। बाद आप अपनी बुक का टाइटल डालें, देन आफ्टर द टाइटल आप अपनी बुक का डिस्क्रिप्शन डालें, जो भी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन के टैग्स डाल दें। सो जो भी आपके बुक के टैग्स हैं वहाँ पर 5 टैग्स डाल सकते हैं आप मैक्सिमम, आप यहाँ पर टैग्स डाल दें। सो वट एवर द टैग्स आर फॉर योर पर्टिकुलर बुक। उसके बाद आपको अपना बुक का प्राइस डालना है। सो लेट्स से मेरी बुक का प्राइस 500 रुपये है, बट दिल्ली बुक फेयर पे अगर ये भी आपके ऊपर है, अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस रखना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर मैं दिल्ली बुक फेयर पे उसको 400 रुपये की बेचना चाहता हूँ तो मैं उसको डिस्काउंटेड प्राइस 400 रखूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आपको स्टॉक डालना है यहाँ पर कि आप उस बुक का कितना पर्टिकुलर स्टॉक रख रहे हैं। सो आई विल पुट 50 हियर अभी। आवाज नहीं आ रही सर जी। और तो सर मैं बोल रहा था कि ये डिस्काउंटेड प्राइस में आप इसको बिल्कुल जीरो मत रखिएगा। अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस नहीं देना चाहते तो आप इसमें कुछ मत फिल करिएगा, क्योंकि अगर आप जीरो दिखाएंगे तो वो आपको 0 रुपीज़ में देन आपकी बुक चली जाएगी, तो दैट शुडंट बी द केस। तो आप इसमें डिस्काउंटेड प्राइस में अभी इसको 400 में कर देता हूँ। देन इसके बाद सेम प्राइस रख सकते हैं क्या सर इसमें? सर सेम प्राइस रख दे, ज्यादा बेटर नहीं है? अगर 500 ओरिजिनल है और डिस्काउंट नहीं है तो 500 डाल प्राइस दे। रखते हैं। जी जी सर इंक्लूसिव ऑफ GST भी है? हाँ जी सर। सर बुक्स के अंदर जो प्योर बुक्स होंगी उसके अंदर कोई GST नहीं होता, तो ऑफ कोर्स GST एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर आप कुछ और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे हो सकता है कोई यहाँ पर बुक के साथ में कोई टॉय, कोई स्टेशनरी, कोई भी और चीज़ बेचेगा, तो उसके ऊपर जो एप्लीकेबल GST है वो एप्लीकेबल GST होगा। आपको अपना प्राइस GST मिला के रखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, बुक्स के लिए तो नहीं होगा GST राइट? तो GST नहीं है, मगर क्या होगा, जो आपका शिपिंग चार्ज वगैरह होता है उनके अंदर तो GST लगता है सर। हाँ जी। बट वो सेपरेट, वो दैट इज सेपरेट, बट स्टिल बुक के ओरिजिनल प्राइस के अंदर और डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर कोई GST नहीं होगा। तो टू द एक्सटेंट आप बुक ही बेच रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको GST की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर कोई कुछ और बेच रहा हो, एनी अदर प्रोडक्ट, तो उनको GST इंक्लूड करके रखना पड़ेगा। ओके गॉट इट सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट है आपका स्टॉक। आप अपना स्टॉक डालेंगे जितना भी आप डेली बुक फेयर पर रखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर बुक का। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है वेट। तो आपकी इस किताब का जितना भी वेट है आपको वेट पुट इन करना है इन केजीज। सो लेट्स से अगर मेरी किताब का वेट 0.5 केजीज है तो मैं 0.5 लिख दूंगा, 1 केजीज है तो 1 लिख दूंगा, 0.2 है तो 0.2 लिख दूंगा। सो ग्राम में नहीं डाल सकते सर, ये ऐसे लिखना पड़ेगा ये 200 ग्राम या 400 ग्राम? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सर। आई विल कंफर्म विद द टीम एंड लेट यू नो कि अगर ये ग्राम्स में ग्राम में अगर डाल दें तो, क्योंकि किताब का तो 400 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम ऐसे होता है, तो वो कंफ्यूजन रहेगा कि 0 पॉइंट कितना डालें। जी 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 जी। तो वेट क्या पर्टिकुलर सेम वेट ही डालना पड़ेगा या फिर एवरेज को अप्रोक्सीमेट वेट डालने से ही चलेगा? हेलो हेलो सर इसमें वेट ही डालना है और इसमें ब्रैकेट में ग्राम्स करवा देना, और ग्राम्स का बेटर रहेगा। इसमें जितना भी ग्राम हो वो ग्राम लिख दें। मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बट अगर आप 0 पॉइंट करके भी लिखेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो ग्राम्स ओनली। अगर आप 0.2 लिखेंगे तो वो 200 ग्राम हो गया, 0.5 लिखेंगे तो वो ½ kg हो गया। सो करंटली दैट फीचर इज इधर वर्किंग। तो जैसे अभी भूषण जी ने बताया कि 0.5 ग्राम हुआ तो वो ½ kg हो गया, 1 लिखा तो आपने 1 kg हो गया। अगर आपकी बुक का ग्राम सपोज करो 200 ग्राम है तो आपने 0.2 लिखा तो वो 200 ग्राम हो गया सर। तो कोई मतलब यही फीचर रखना है या 200 ग्राम वाला भी चलेगा? कौन सा फीचर रखना है सर इसमें? सर जो आप रखना चाहते हैं, आपकी बुक 200 ग्राम की है तो आप 0.2 करके कर देंगे, फिर ½ किलो की है तो 0.5 कर देंगे, 100 ग्राम की है तो 0.1 कर देंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है सर। बिल्कुल नहीं, यही आपने यही फीचर रखना है या 200 ग्राम 200 लिख दें, उसमें 300 लिख दें या 400 200 नहीं रहेगा, 200 नहीं रहेगा, 0.2 रहेगा। क्योंकि अगर 1 लिखा है तो वो 1 किलो हो गया, 0.5 लिखा तो वो ½ किलो हो गया, तो उसी हिसाब से हो जाएगा। ठीक है सर। सर एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन चलेगा? अप्रोक्सीमेट बिल्कुल चलेगा सर। ठीक है सर। ओके सर।
सो जो ये वेट्स हैं आपकी किताब की, ये आपका शिपिंग का प्राइस डिटरमाइन करेंगे, जो आप बाद में शिपिंग टेम्पलेट में सेट करते हैं। सो इसलिए ये वेट आपके क्रूशल हैं। तो मैं यहाँ पर अभी 1 डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपके पास न्यू लॉन्च का। तो अगर आपकी किताब एक न्यू लॉन्च है तो आप यहाँ पर येस सेलेक्ट कर सकते हैं और इट विल शो अप एज अ न्यू लॉन्च आपके स्टॉल में। उसके बाद इज़ अप फॉर सेल में आपको बिल्कुल येस करना है, क्योंकि अगर आप कोई किताब शोकेस कर रहे हैं तभी आप इसमें नो करें, अदरवाइज सारी किताबें आपकी सेल पर ही रहेंगी। तो इसमें आपको येस करना है ज़रूर। इसके बाद आप अपना एक इमेज अपलोड करेंगे किताब का 360x470 में, और जैसे ही आप ये अपडेट कर देंगे, स्टेटस को आपने रखना है एक्टिव ताकि आपकी किताब स्टॉल पर शो हो, एंड देन आपको क्लिक करना है क्रिएट। सर आई एम हैविंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है टाइटल पे। हेलो कैन आई? जी टाइटल पे इफ आई एम हैविंग अ मैथ्स बुक इट इज फ्रॉम 1 to 5, सो टाइटल पे इफ आई एम गिविंग मैथ्स रीडर 1, तो वहीं पे क्या मैथ्स रीडर 1 2 करके अलग अलग से, मतलब एक बार करके हमें पुट करना पड़ेगा, या फिर मतलब 1 to 5 करके मैं मैथ्स का बुक का? तो मैम जो सीरीज का था, जैसे कल आपको बताया था कि अगर आपकी 5 बुक की सीरीज है या 3 बुक की सीरीज है, तो टाइटल आपको बुक की सीरीज का नाम देना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर देंगे 1 to 5, और टोटल प्राइस जो होगा आपकी सीरीज का वो आप ओरिजिनल प्राइस में रखेंगे। लेट सपोज आपका टोटल प्राइस 5 बुक का 1000 रुपए है, तो वो 1000 रुपए आप सीरीज में रखेंगे, क्योंकि आपकी सीरीज में बुक जाएगी वो आपका एक प्रोडक्ट होगा। और अगर आप उस पर डिस्काउंटेड प्राइस दे रहे हैं, लेट सपोज 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वहां पे आप डिस्काउंटेड प्राइस में उसको 800 रुपए लिखेंगे, तो आपकी बुक 200 रुपए कट के 800 रुपए होगी। और अगर आप कोई भी बुक पे डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो 1000 रुपए का प्राइस है, तो आप डिस्काउंटेड प्राइस भी 1000 रुपए लिखेंगे, ताकि फ्रंट में आपका वो 1000 रुपए की हो। तो आपको टोटल लिखना है। तो जो सीरीज होंगी, जो भी होती है मल्टीपल, वो आप एक ही प्रोडक्ट में डालेंगे, अलग अलग नहीं डालेंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 5 बुक जो सीरीज है वो 5 अलग अलग प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, या सिंगल एक प्रोडक्ट में अपनी सीरीज कवर करना चाहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिशर हैं, उनको 40 प्रोडक्ट ही मिलेंगे। कई बार होता है उन्होंने बैकएंड पे अनअसाइन प्रोडक्ट में 53, 54, 55 कर दिया है, लेकिन जब वो असाइन करेंगे और उनका 40 की कैपेसिटी है, तो 40 ही शो होंगे फ्रंट एंड। जिन्होंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिए हैं, जिन्होंने 100 प्रोडक्ट लिए हैं या जिन्होंने 150 लिए हैं, उनको ही वो उठने की लिमिट मिलेगी। बाकी आपके बैकएंड पे आप चाहे 55 प्रोडक्ट डाल दें, 56 डाल दें, लेकिन जब तक आप उनको असाइन करेंगे तो वो 40 प्रोडक्ट ही शो होंगे। थैंक यू जी। कैटलॉग में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रख सकते हैं सर? कैटलॉग में आप जो भी कैटलॉग शो करेंगे दैट विल बी अबाउट योर पर्टिकुलर बुक ओनली ना, तो जिस बुक का आप कैटलॉग साथ में डालेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। सर अदरवाइज अगर आप कैटलॉग के अंदर और बुक्स अपना पूरा कैटलॉग भी डालना चाहें तो वो आपका चॉइस है। आपका जो शोकेस है वो जितना आपके स्टॉल के अंदर अलाउड है उतना होगा। अदरवाइज आप अपने कैटलॉग के अंदर कुछ भी डाल के बेच सकते हैं। आप जैसे हर बुक के अंदर आपको ऑप्शन है उसका कैटलॉग डालने की या उसका ब्रोशर डालने की, एक पीडीएफ डालने की। आप वहाँ पर पीडीएफ डालने की जगह आप वहाँ पर अपना पूरा कैटलॉग अपलोड कर दीजिए, चाहे 50 बुक का हो चाहे 1000 बुक्स का हो। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। वो कैपेबिलिटी आपके पास ऑफ कोर्स अवेलेबल है। ओके, तो कैटलॉग में एक्स्ट्रा बुक्स डाल सकते हैं। बिल्कुल सर, कैटलॉग में आप कुछ भी डालिए, सिर्फ जो आपकी शोकेस बुक्स हैं हमने वो लिमिट की हुई है। जी। ठीक है सर। सो वंस दिस इज द इमेज इज अपलोडेड, आप अपडेट पर क्लिक करें और आपका प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। सो सेम प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, आपके पास मैसेज आ जाएगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इज दिस इमेज हैविंग एनी स्पेसिफिकेशंस? यस मैम, एज शेयर्ड बाय मी 360x470 की इमेज आपको डालनी पड़ेगी इधर। क्या जो बुक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उसका ही इमेज डालना पड़ेगा, राइट? मैम जो बुक होगी आप उसी का इमेज डालेंगे इन दिस पर्टिकुलर साइज। ये साइज डायमेंशंस हैं 360x470 पिक्सल्स जी। तो जैसे अब ये हमने सिंगल प्रोडक्ट का देख लिया कि हाउ, मैम एम आई ऑडिबल? ओके, सो हमने सिंगल प्रोडक्ट का भी देखा कि कैसे अपलोड करते हैं। नाउ अब मैं आपको लेके चलता हूँ बल्क अपलोड के प्रोसेस पे। सो बल्क अपलोड के प्रोसेस के लिए आपको एग्जीबिशन स्टॉल्स पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट्स लिस्ट पे क्लिक करना है।
प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है इंपोर्ट बल्क प्रोडक्ट्स पे। आप इंपोर्ट बल्क प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सैंपल टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा। आप इस सैंपल टेम्पलेट पे क्लिक करें। अब इस सैंपल टेम्पलेट पे आपको एक बार खोल के देखें इसको, तो आपको इसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। आप ये मेरी एक्सेल शीट देख पा रहे हैं। तो ये सैंपल टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले आएगा आपका SKU कोड, उसके बाद आएगा आपका टाइटल, उसके बाद आएगा आपका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आएगी आपकी करेंसी जो INR ही रहेगी, इसके बाद आपकी क्वांटिटी आएगी, इसके बाद आपका वेट इन केजी आएगा, इसके बाद आपका प्राइस आएगा, और इसके बाद अगर डिस्काउंट प्राइस कोई होगा तो आप यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस डाल देंगे। इसके बाद इस न्यू में आपके पास अगर कोई न्यू लॉन्च है तो आप 1 लिखेंगे, अगर न्यू लॉन्च नहीं है तो आप इसको 0 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप 5 टैग्स डाल सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो आप यहाँ कॉमा से सेपरेट करके टैग्स डाल देंगे। इसके बाद अप फॉर सेल का जो कॉलम है इसमें आपको 1 ही रखना है, क्योंकि आपकी सारी प्रोडक्ट सेल पर होंगे। अनलेस कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सेल नहीं करना चाहते तो आप उसको 0 कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 1 ही रखना है। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट इमेज URL है, नाउ अब आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी सारे प्रोडक्ट्स आप अपलोड कर रहे हैं तो ये इतने सारे इमेज URLs आपको कहाँ से मिलेंगे। तो जितनी भी आपकी इमेजेस हैं आप उनको एक जगह कंबाइन करें, और उसके बाद हमने एक यूटिलिटी बनाई है आपके लिए बल्क इमेज अपलोडर। तो आपको क्या करना है कि जो आपका मेल आया है इन्विटेशन वाला, इसके अंदर ही आपको ये बल्क अपलोडर की यूटिलिटी दी गई है। क्या आप मेरा लिंक देख पा रहे हैं यहाँ पर? तो जो आपको इनवाइट का ईमेल आया है इसमें ही ये बल्क अपलोड की यूटिलिटी है। आप इस पर क्लिक करें। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बल्क इमेज अपलोड करने का और बल्क डॉक्यूमेंट अपलोड करने की यूटिलिटी देता है। एक बारी में आप 20 कर सकते हैं इसमें। सो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। तो इसमें आप अपना नाम डालें, आप अपना ईमेल आईडी डालें, देन आप अपनी फाइल्स चूज कर लें। तो अब मैं जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 360 बाय 470 इमेज साइज रहता है उनका, तो मैं उसकी ऐसे यहाँ पर 3-4 इमेज अपलोड या 5 इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो मैं इनको ओपन करूँगा यहाँ पर एंड अपलोड पर क्लिक कर दूंगा। अभी आप देख रहे हैं मैसेज आ गया मेरे पास, 5 फाइल्स हैव बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर अपलोडेड इमेजेस इन द लिस्ट ऑफ। तो इसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी जितने भी लिंक्स होंगे। तो जैसे मैं इसको क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ, आप देखिए मेरे पास ये CSV फाइल डाउनलोड हो गई है, एक्सेल फाइल। इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सारे इमेज URLs आ गए हैं। तो ये इमेज URL में आपको दिख रहा होगा कि मेरी इमेज अब खुल गई है। तो ये इमेज URLs आ गए हैं मेरे पास। इसके बराबर में जो इमेज का नाम है वो भी आ गया है। तो जो भी आपका किताब का आपने नाम रख रखा होगा वो आपको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर इमेज का URL, किताब का URL ये वाला है। तो आप यहाँ से ये इमेज के URLs कॉपी करेंगे इस एक्सेल शीट में से, और जो आपकी प्रोडक्ट्स वाली एक्सेल शीट है जो हमने अभी खोली थी इससे पहले, जस्ट 1 मोमेंट, ये खुली हुई है आपकी एक्सेल शीट, आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो ये यहाँ पर आपकी URLs पेस्ट हो जाएंगे, और आप इन URLs को यूज कर सकते हैं जितनी भी आपकी इमेजेस हैं उनको अपलोड करने के लिए। अब इसके बाद आपके पास ये मीडिया इमेज URL 1, मीडिया इमेज URL 2, मीडिया इमेज URL 3, मीडिया इमेज URL 4। सो ये एक्स्ट्रा इमेज डालने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो आप सिमिलरली उसी बल्क अपलोडर से अपनी इमेजेस अपलोड करके यहाँ पर वो लिंक्स पेस्ट कर देंगे और आपके वो इमेजेस स्टॉल में शो हो जाएंगी। जो ये आपका मीडिया वीडियो URL है, ये आप अपनी स्टॉल में वीडियो भी डाल सकते हैं, बट इसका जो URL रहेगा आपका वो सिमिलर रहेगा। जैसे मैंने आपका YouTube शोकेस वीडियो का दिखाया था, वो सेम आपको YouTube वीडियो पे जाना है। YouTube वीडियो पे जाने के बाद आपको यही वाला URL कॉपी करना है एम्बेड वाले में से। तो आप शेयर पर जाएंगे, आप एम्बेड पर जाएंगे और आप यही URL कॉपी करेंगे, ये जो छोटा सा URL है डबल कोट्स के बीच में, और आप इस URL को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो इस तरीके से आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। जो आपका कैटलॉग का URL है वो जाएगा यहाँ पर। सो सिमिलरली आप कैटलॉग्स भी अपलोड करने के लिए हमारी ये जो बल्क अपलोडर की यूटिलिटी है इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पर बोल रहा है कि यू कैन अपलोड योर इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स। तो आप यहाँ पर अपने PDF डॉक्यूमेंट्स जो ब्रोशर्स होंगे आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि जो आपके PDF ब्रोशर्स हैं उनका साइज छोटा रहे ताकि आपकी स्टॉल इजीली लोड हो पाए। तो आप मेक श्योर करें कि अगर ऐसा है कि आप 40
प्रोडक्ट्स के साथ 40 ब्रोशर अपलोड कर रहे हैं, तो वो सारे ब्रोशर्स 10-10 MB या 15-15 MB के ना हो, इतने बड़े ना हो, छोटे रहें, ताकि लोग आपके ब्रोशर्स इजीली लोड कर पाएँ। सो दिस इज हाउ द बल्क अपलोड विल वर्क। एक बार आपने ऐसे ये बल्क अपलोड की लिस्ट शीट बना दे, अगर आप एक बार बना देते हैं, सो ये शीट बनने के बाद ये शीट बनने के बाद आप इस शीट को उस बल्क अपलोडर में अपलोड करेंगे। तो मैं देता हूं कि कैसे। बस दिस शीट इज, Your voice is breaking up. Can't hear you. जी आपको आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है। अभी आ रहा है। ओके, 1 सेकेंड। मैं आपको एक सेक्शन और दिखा देता हूं इसमें। तो ये जो प्रोडक्ट वाली आपकी एक्सेल है, इसमें एक रीडमी सेक्शन भी रहेगा, जो आपको बताएगा कि कौन से आपके जो सेक्शंस हैं वो मैंडेटरी हैं कि नहीं है। जैसे SKU कोड जो रहेगा आपका मैंडेटरी रहेगा, टाइटल मैंडेटरी रहेगा, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी रहेगा, करेंसी, क्वांटिटी, वेट, प्राइस और डिस्काउंट प्राइस, ये सब चीज़ें मैंडेटरी रहेंगी। इसके बाद इज न्यू आपका ऑप्शनल सेक्शन है, टैग्स आपके ऑप्शनल सेक्शन है, अप फॉर सेल मैंडेटरी रहेगा, प्रोडक्ट इमेज URL मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद जो बाकी के भी एक्स्ट्रा URLs हैं, जो आप एक्स्ट्रा इमेजेस या एक्स्ट्रा वीडियोस या कैटलॉग्स डालेंगे, वो सारे भी आपके ऑप्शनल फील्ड्स हैं, तो उसके बिना भी आपकी एक्सेल शीट अपलोड हो सकती है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे अपलोड करना है ये। सो जैसे ही आपका वो शीट टेम्पलेट बन जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो अपना एक्सेल शीट जो है उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपलोड का बटन दबाएंगे और आपके पास मैसेज आएगा दैट योर प्रोडक्ट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। जैसे अभी मैंने सिर्फ 3 प्रोडक्ट डाले थे, तो मेरे 3 प्रोडक्ट अपलोड हो गए हैं। आप अपने 40 प्रोडक्ट्स भी डालेंगे, या फिर अगर किसी ने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ले रखे हैं, 100 ले रखे हैं, तो 100 भी डालेंगे, तो वो ईजिली अपलोड हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ योर प्रोडक्ट्स कैन बी अपलोडेड इन बल्क। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका, वो रहेगा आपको अपना शिपिंग टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। सिंस एवरी बुक हैज़ टू गो विद अ शिपिंग प्राइस, तो हमने एक शिपिंग टेम्पलेट का ऑप्शन डाला है इस बारी। सो शिपिंग टेम्पलेट बनाने के लिए आप मैनेज शिपिंग पर क्लिक करेंगे। मैनेज शिपिंग पर क्लिक करने के बाद आप क्रिएट न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आप क्रिएट न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। इसके अंदर आप ये सेलेक्ट टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें आप सेलेक्ट करेंगे माइग्रेटेड टेम्पलेट। ये सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट न्यू का बटन दबा देंगे। सर एक क्वेश्चन था जी। लास्ट ईयर जो हमने 40 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, वो एज इट इज अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनको मैनेज करके डिलीट करना है या आपके एंड से होंगे? सर आप और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो और उनको आप यू कैन जस्ट कीप देम असाइड, क्योंकि क्या रहेगा ना, अभी भी आप मैनुअली उनमें सब में जाके वेट चेंज करेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके लिए ही। और सिंस अभी साइज भी हमने बड़ा कर दिया आपकी इमेज का, ताकि आपकी बुक का टाइटल ज़्यादा बड़ा दिखे, सो वो आपको उस पर मैनुअली सारी चीज़ें दोबारा से चेंज करनी पड़ेंगी। मतलब प्रोडक्ट वाइज मेरे को एक प्रोडक्ट को ठीक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको पूरा कंप्लीटली डिलीट हो जाए वो? नहीं सर, आप ऐसा कर सकते हैं, आप नए प्रोडक्ट्स, आप उन सिमिलर प्रोडक्ट्स चाहे बट आप दोबारा ऐड करिए, और जब आप ऐड कर लेंगे तो उसमें सर ये भी प्रॉब्लम होगा कि 40 की अगर लिमिट है तो 40 प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड, सो वी विल गेट अ 41 ऑप्शन और नॉट? सर सो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है जो आपके प्रोडक्ट्स असाइन करके दिखेंगे, और एक है जो आपके प्रोडक्ट्स अपलोडेड होंगे। आप अपलोडेड 100 कर दीजिए, बट एक बारी में आप असाइन करके दिखा 40 ही पाएंगे अगर आपकी 40 की लिमिट है, तो आपको असाइन और अनअसाइन करने पड़ेंगे, सिर्फ वो करना पड़ेगा आपको। मतलब एक्टिव और अनएक्टिव जो स्टेटस आता है उसके हिसाब से करना पड़ेगा? बिल्कुल सर। अभी और वो असाइंड और अनअसाइंड और इनएक्टिव वाला सेक्शन वो कहाँ से होगा सर? अभी इसके बाद आपको दिखाते हैं, एक बार पहले के बारे में बात। इसमें सर एक चीज ये भी होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे मैं डे 1 पे इन 40 बुक्स को लगाऊं, मगर डे 2 पे इनमें से 10 बुक्स या 15 बुक्स या 2 बुक्स या 1 बुक जितना भी चेंज कर पाऊं। आप वो भी कर सकते हैं। आप 70 बुक्स डालिए, 40 बुक्स पहले दिन रखिए, उसमें से 15 को असाइन करके अनअसाइन करके अगले दिन 15 ऐड कर दीजिए, और उसके बाद में अगले दिन और 15 अनअसाइन करके और 15 और असाइन कर दीजिए। जैसे भी आप मैनेज करना चाहें वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उस पर हमारी, तो आप कितनी भी बारी बुक्स चेंज कर सकते हैं, हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें।
Pardon, please. हेलो। हेलो। हाँ सर, इसमें जैसे पुराने जो टाइटल हमने 40 डाले हुए थे, हमने उसी में एडिट कर दिया, वो इमेज भी एडिट कर दी और वेट भी एडिट कर दिया, तो जी। वो तो चीज चल जाएगी ना। जो शिपिंग टेम्पलेट है वो भी माइग्रेटेड टेम्पलेट करके ठीक कर दी है वो। जी सर, वो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है सर, तो ये शिपिंग टेम्पलेट पे जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, माइग्रेटेड टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद, तो आपका कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। अब इस स्क्रीन में आप पहले अपना टेम्पलेट नेम डाल लें, या आप इसको माइग्रेटेड टेम्पलेट कॉपी ये भी छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपना एक नाम भी दे सकते हैं अपने पब्लिशर के हिसाब से। इसके बाद सर आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं रेट मॉडल्स के। तो एक रहता है आपका पर आइटम या वेट बेस्ड मॉडल, एक रहता है प्राइस बैंडेड मॉडल। तो पहले हम पर आइटम वेट बेस्ड मॉडल की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके पास रीजन्स हैं सारे, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, अदर्स। सो इन सारे रीजन्स में अगर आप चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली तो सारे रीजन सेलेक्टेड हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रीजन की, कुछ पर्टिकुलर स्टेट या कुछ पर्टिकुलर सिटी से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मेरी बुक चंडीगढ़ में मैं शिप नहीं करता हूँ, तो मैं वो एडिट कर सकता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। तो आप जैसे देखें, अगर से फॉर एग्जांपल मैं पंजाब में रोपड़ में अपनी किताब नहीं भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अनटिक कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। तो वो मेरे में से जो रीजन है वो मेरी शिपिंग में से हट जाएगा। तो कोई अगर किताब मेरी उस पिन कोड डाल के खरीदना चाहेगा, रोपड़ सिटी डाल के खरीदना चाहेगा, तो वो नहीं खरीद पाएगा। उनको मैसेज आ जाएगा दैट ये सर रीजन डिलीट कर सकते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं क्या? सर इसमें सारे रीजन्स एडेड हैं। आप जितने भी इंडिया के सारे रीजन्स, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट एंड अदर, ये सारे रीजन्स इसमें अवेलेबल हैं। तो इंडिया के सारे सिटीज और स्टेट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप इसमें से एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सर ये सिस्टम काफ़ी सिमिलर टू अमेज़ॉन बना हुआ है। तो जब जैसा आप अमेज़ॉन पे सेटअप करते हैं, आप उसके हिसाब से इसको यहाँ पर सिमिलर सेटअप कर सकते हैं। हमने सारे रीजन्स इसके अंदर कवर किए हुए हैं इंडिया के। जो रीजन आप करना चाहें वो कर सकते हैं, और जो नहीं करना है आपको सर्विस, अगर आप सोचते हैं जैसे कोई स्पेसिफिक रीजन आपके लिए सूटेबल नहीं है, कॉस्ट शिपिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा पड़ता है, ऑर्डर नहीं आता है, तो वो आप सारा डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। सो जो आपका पर आइटम और वेट बेस्ड मॉडल है उसकी तरफ चलते हैं अब। तो आप पहले अपना ट्रांजिट टाइम सेलेक्ट करेंगे, 4 से 6 दिन, 6 से 8 दिन, 8 से 10 दिन, 10 से 14 दिन, आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप शिपिंग पर आएंगे। तो शिपिंग फी, सबसे पहली शिपिंग फी तो होगी पर ऑर्डर। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फिक्स फी रहेगी। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक किताब खरीदता हूँ तो मेरे को 10 रुपीज़ तो शिपिंग फी देनी ही देनी पड़ेगी, नो मैटर मैंने 5 किलो की किताब खरीदी है या 500 ग्राम की किताब खरीदी है, या फिर एक किताब खरीदी है या फिर 5 किताबें खरीदी हैं। ये शिपिंग फी पर ऑर्डर है। तो ये एक ऑर्डर पे लेट से मैंने 10 रुपये फिक्स कर दिया। अब उसके बाद आप इसको या तो पर आइटम रख सकते हैं या फिर पर केजी रख सकते हैं। सो ये एडिशनल कॉस्ट रहेगा। तो अगर मैंने पर आइटम रखा 50 रुपये और मैंने किसी बंदे ने आपसे 5 आइटम खरीदे हैं, तो वो 50 × 5 हो जाएगा और प्लस उसमें 10 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो 10 रुपये आपका स्टैंडर्ड हो गया पर ऑर्डर, उसके बाद 50 रुपये पर आइटम हो गया। सो इस तरीके से आपका शिपिंग कॉस्ट डिफाइन हो जाएगा। अब अगर आपको ये पर केजी के हिसाब से रखना है तो आप पर केजी के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो जितने भी इंसान आपसे बुक्स खरीदेगा उस बुक्स के टोटल केजी के अमाउंट पर आपका ये पर केजी कॉस्ट ऐड हो जाएगा। सो जैसे ही आप एक कॉस्ट ऐड कर देंगे, आप इसको यहाँ से सेव कर दें। ये आपका शिपिंग कॉस्ट यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके अलावा आप हर रीजन के लिए एक स्पेसिफिक कॉस्ट डाल दें, पर आइटम, पर केजी, जिस हिसाब से भी आपको रखना है, और सब सारी सेक्शंस को सेव करते हुए चलें। एक बार आप सारे सेक्शन सेव कर देंगे। सारे सेक्शन सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ऊपर पर यहाँ पर एक ये सेव का बटन दिख रहा होगा, आपको ये सेव का बटन दिखाना है। तो जैसे ही आप ये सेव का बटन सेलेक्ट करेंगे, आपका टेम्पलेट जो है शिपिंग का वो सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। नाउ ये तो था आपका पर आइटम और वेट बेस्ड वाला शिपिंग। अब हमारे पास एक प्राइस बैंडेड शिपिंग का भी ऑप्शन है, तो उसकी तरफ चलते हैं। अगर आप
पहले एक शिपिंग टेम्पलेट बना चुके हैं और फिर दूसरा बनाना चाहेंगे तो एक आपको अलर्ट दिखाया जाएगा जो बताएगा कि आपके पहले वाले शिपिंग रेट डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो उसको आप ओके कर दें, क्योंकि अगर आपको रेट चेंज करना है अपना शिपिंग टेम्पलेट। तो जो प्राइस बैंडेड शिपिंग टेम्पलेट है इसके अंदर सेम ऑप्शंस है रीजन्स के लिए, अगर आपको करना है तो ट्रांजिट टाइम का भी सेम ऑप्शन है। इसके बाद आपको बैंड्स डिफाइन करने हैं अपने ऑर्डर के। सो अगर आपका ऑर्डर बैंड है 0 से 1000, लेट से पहला आपका ऑर्डर बैंड है 0 से 1000 इन नॉर्दर्न रीजन, तो आप उसके लिए अपना शिपिंग प्राइस डाल सकते हैं। लेट से आप 50 रुपये चार्ज करेंगे। इसके बाद आप एक और शिपिंग बैंड बना सकते हैं 1000 से लेके 2000 रुपये, उसके लिए डाल सकते हैं 60 रुपीज़। सो सिमिलरली आप ये सब बैंड बना सकते हैं कि आपके ऑर्डर वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका शिपिंग प्राइस डिसाइड हो जाए। सो इसमें आपका कोई वेट नहीं आएगा, कोई पर आइटम कॉस्ट नहीं आएगा, ये शिपिंग प्राइस सोलली आपके ऑर्डर वैल्यू पे डिसाइड होएगा। सो जैसे ही आपने ये बना लिया है, इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर दें। और सिमिलरली आप सारे रीजन्स में जाके ये प्राइस बैंड्स बना के सेव का बटन दबाएं। जब एक बार सब कुछ सेव हो जाता है उसके बाद आप ऊपर ये वाला सेव का बटन दबा दें और आपका शिपिंग टेम्पलेट सेव हो जाएगा। शिपिंग टेम्पलेट मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी बुक फेयर पर खरीदेगा तो उसको दिखाई देगा, विच विल बी अ लॉस फॉर ऑल द पब्लिशर्स। सो इसीलिए शिपिंग टेम्पलेट बनाना इज मैंडेटरी। सर शिपिंग टेम्पलेट वेट के हिसाब से नहीं है? सर वेट बेस्ड है, मैंने आपको पहले दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जो आप रेट मॉडल है वो पर आइटम वेट बेस्ड है और प्राइस बैंडेड है। तो अगर आप प्राइस बैंडेड रखना चाहेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का सेटअप मिलेगा जिसमें आप प्राइस के हिसाब से रख सकते हैं ऑर्डर के। अगर आपको पर आइटम या वेट के हिसाब से रखना है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। पर आइटम और वेट के हिसाब से आप इधर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर एक फिक्स पर ऑर्डर कॉस्ट डालना पड़ेगा। इसको आप 0 भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो। फिक्स पर ऑर्डर कॉस्ट डालना पड़ेगा। इसके बाद पर केजी आपको यहाँ पर कॉस्ट डालना पड़ेगा या पर आइटम आपको यहाँ पर कॉस्ट डालना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, आप इसको पर आइटम या पर केजी कॉस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। सो अगर मैंने यहाँ 50 रुपीज़ पर केजी डाला तो मैं यहाँ पर जाके सेव कर सकता हूँ और इधर जाके अपना प्राइसिंग मॉडल मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ शिपिंग टेम्पलेट का। कोई भी एक सिलेक्ट करना है यानी? जी, इधर पर केजी और पर आइटम, ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके से करना है। और इन दोनों रेट मॉडल्स में से भी आप सिर्फ एक रेट मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो प्राइस बैंडेड या फिर पर आइटम या वेट बेस। तो इन दोनों में से भी आपको एक सेलेक्ट करना है। सो ये हो गया आपका शिपिंग टेम्पलेट। एक बार शिपिंग टेम्पलेट बन जाता है तो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स असाइन करने हैं और अपना स्टॉल लाइव करना है। सो हम चलते हैं प्रोडक्ट्स लिस्ट में। प्रोडक्ट्स लिस्ट में आए, आपको यहां पर अपने सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है सर। अब अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद हम चलते हैं स्टॉल्स लिस्ट में। हम स्टॉल्स लिस्ट में आ गए। स्टॉल्स लिस्ट के अंदर आपको अपना स्टॉल नेम दिखाई दे रहा होगा। सो आप अपने स्टॉल नेम पर क्लिक करें। स्टॉल नेम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये 2 टैब्स दिखाई देंगे, अनअसाइंड प्रोडक्ट्स और असाइंड प्रोडक्ट्स। सो अभी हमने सिंस अपलोड ही करे हैं प्रोडक्ट्स, हम अनअसाइंड प्रोडक्ट्स पर चलते हैं। सो अनअसाइंड प्रोडक्ट्स पर हम जाएंगे तो हमको यहाँ पर अपने सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे जाएंगे। तो अब हमको ये सारे प्रोडक्ट्स अपनी स्टॉल में लेके जाने हैं। तो आपको यहाँ पर ये टिक बॉक्स दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको आएगा ऑप्शन असाइन ऑल प्रोडक्ट्स का। आप इस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और ये सारे अब असाइन प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे। सो इतना आसान है अपना स्टॉल पर आपके प्रोडक्ट्स डालना। अब जैसे अभी मिस्टर कपिल बता रहे थे कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं। सो सपोज करते हैं कि आपने पहले वाले दिन ये 4 प्रोडक्ट्स रखे एंड नाउ आप चेंज करना चाहते हैं इन 4 प्रोडक्ट्स को, तो आप सिंपली इनको अनअसाइन कर देंगे और जो 4 नए प्रोडक्ट्स हैं वो आपके जो अनअसाइन प्रोडक्ट्स में शो हो रहे होंगे उनके पास जाकर उनको असाइन कर देंगे और वो दूसरे प्रोडक्ट्स आपकी स्टॉल में शो होने लग जाएंगे। सर दोबारा से समझा दीजिए एक बार। हाँ प्लीज। ऑल्सो जैसे अगर आपने पहले लास्ट ईयर स्टॉल बनाया था और आपके पुराने 40 प्रोडक्ट्स पड़े हैं और आप अभी दोबारा से एक्सेल से ही 40 प्रोडक्ट्स अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने नए वाले 40 प्रोडक्ट्स असाइन करने पड़ेंगे आपके पुराने वाले प्रोडक्ट्स हटा के। सो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। बैक एंड पे कितने भी हैं लेकिन फ्रंट में 40 है।
जी, बैकएंड पे आपके कितने भी प्रोडक्ट्स रह सकते हैं, बट फ्रंट में ओनली 40 प्रोडक्ट्स विल शो। तो मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूं। जैसे आप प्रोडक्ट्स असाइन करेंगे, जैसे आप प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे, आपके वो प्रोडक्ट्स ये अनअसाइंड प्रोडक्ट्स के सेक्शन में शो होंगे। जहां तक आप लोगों को समझ आ रहा है जी। सो अनअसाइंड प्रोडक्ट्स में शो होंगे। अनअसाइंड प्रोडक्ट्स में शो होने के बाद लेट्स से, जैसे मैंने यहाँ तो सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स डाले हैं, हम सपोज करते हैं कि आपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स डाल रखे हैं, 50 डाल रखे हैं, 60 डाल रखे हैं, आपकी लिमिट सिर्फ 40 की है, बट आपको दिखाने 50-60 है ओवर द कोर्स ऑफ 2 डेज। तो आप एक दिन, लेट्स से मैंने आज असाइन किया क्योंकि मेरी 1 की लिमिट है, तो आज मेरा ये प्रोडक्ट दिखाई देगा स्टॉल पर, ठीक है सर। अब नेक्स्ट दिन मैं बोलता हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट हटा देता हूँ स्टॉल पे से और मैं अपना दूसरा प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स से मैं अब आज ये वाला प्रोडक्ट दिखाता हूँ, तो मैंने ये असाइन कर दिया, दिस विल गो टू माई स्टॉल। तो जैसे मैं अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ कर रहा हूँ, आप ऐसा मल्टीपल 10, 20, 30 प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर अब, या फिर मैं एक बार और समझाऊँ आप लोगों को, किसी को कोई कंफ्यूजन? कैन यू प्लीज रिपीट वंस, मेरा कंफ्यूजन हो रहा है मेरा। आप जब प्रोडक्ट्स अपने डालेंगे स्टॉल में, तो वो आपके अनअसाइन प्रोडक्ट्स में आएंगे, ठीक है, आपके यहाँ पर आ गए अनअसाइन प्रोडक्ट्स में। इसके बाद आपको इनको स्टॉल पर अगर लाइव करना है तो आपको असाइन में लेके जाना है इनको। तो असाइन में ले जाने के लिए या तो आप सारे एक साथ ले जाएंगे, या फिर आप जैसे सारे मैंने सेलेक्ट किए तो असाइन ऑल का ऑप्शन आ गया, या तो हम सारे एक साथ ले जाएंगे या फिर हम एक एक करके लेके जाएंगे, डिपेंडिंग अगर हमको कुछ कुछ अलग अलग लेके जाना है तो या जैसे मैंने एक लेके गया मैं अभी असाइन में, तो ये एक प्रोडक्ट है जो मेरी स्टॉल पर अभी शो हो रहा होगा। एंड तो- इसको रिमूव कैसे करना है सर, ये नहीं समझ में आया कि तो रिमूव अब कैसे अगर इसको रिमूव करना है आपको, तो आप देखें यहाँ पर ये टिक बॉक्स है। सो इस पे क्लिक करके आप इसको अनअसाइन कर सकते हैं। सो जैसे अनअसाइन ऑल प्रोडक्ट्स का यहाँ पर आपको बटन आ रहा है, तो इससे आपके सारे प्रोडक्ट्स अनअसाइन हो जाएंगे। अगर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट अनअसाइन करना है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अनअसाइन का बटन, ओके ओके, इट्स क्लियर नाउ सर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, मेरा प्रोडक्ट वापस मेरे बैकएंड में चला जाएगा, स्टॉल से हट जाएगा। असाइंड में 40 रहेंगे सर। जी, असाइंड में 40 रह सकते हैं, तो वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं अगर आप ज्यादा अपलोड करें तो, बट असाइंड में 40 ही रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। तो अभी फिलहाल मैं असाइन कर देता हूँ ताकि स्टॉल हम लाइव कर पाएं। तो जैसे मैंने ये असाइन कर दिए प्रोडक्ट्स, इसके बाद मैं आपको और सेक्शंस दिखा देता हूँ स्टॉल के अंदर। तो आपके पास सोशल लिंक्स रहेंगे, तो आप अपना फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो इनके अपने लिंक्स, जैसे अगर आपका ट्विटर का प्रोफाइल है, ट्विटर का ये लिंक है आपका प्रोफाइल का, तो आप ये अपना सोशल मीडिया का लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम का भी कर सकते हैं, यूट्यूब का भी कर सकते हैं, जो भी आपके चैनल का हैंडल का लिंक है वो आप यहाँ पर डाल के सेव कर दें, एंड सोशल मीडिया के लिंक्स स्टॉल पर एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास एक लाइव वीडियो चैट का भी ऑप्शन है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइव वीडियो चैट में भी लेके चलता हूं, 1 सेकेंड। तो आपके पास ऐसे बटन आ जाएगा कि सोशल मीडिया लिंक हैज बीन एडेड। आप और भी मल्टीपल जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो ये आप सारे एक एक अकाउंट ऐड कर सकते हैं ऑन द स्टॉल। अब जो ये आपका लाइव वीडियो चैट है, ये लाइव वीडियो चैट फंक्शन करता है गूगल मीट। आई हैव वन क्वेश्चन। जी मैम। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे जो आप कह रहे हैं 40 उसमें शो करेंगे, तो वो जो 40 हम वहाँ पे अपलोड करेंगे वो कौन से ऑप्शन से क्लिक से आएगा वहाँ पर 40 का? मैम आप जैसे ही प्रोडक्ट अपलोड, अभी मैंने आपको बल्क अपलोड सिखाया, आपने उधर देखा? बल्क अपलोड कहाँ समझाया, वहाँ से ही होगा वो बल्क अपलोड तो सारे डाल देंगे ना सर, हम चाहे हमारे 40 हो, 50 हो या 60 हो, कितने भी। आप सारे डाल दीजिएगा। आज सपोज करो आपने 100 प्रोडक्ट डाले, ठीक है, तो पर आपकी लिमिट 40 की है असाइन करने की, ठीक है, तो इसके अंदर 100 प्रोडक्ट दिखाएगा। अच्छा ओके ओके, क्लियर क्लियर सर। मतलब यहाँ पे सारे दिखाएगा हमें, अनअसाइंड में 100 दिखाएगा, बट उस अनअसाइंड से आप असाइन सिर्फ 40 कर पाएंगे, या जितनी भी आपकी लिमिट होगी उतना कर पाएंगे। ओके
ओके ओके, एक्चुअली मुझे ये लगा कि ये 100 की जगह 40 ही दिखाएगा वहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे 40 अगेन दूसरे अपलोड करने पड़ेंगे, दैट्स आप व्हाई अपलोड आई एक बारी में कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, ये क्वेश्चन पूछ लिया। आई एम श्योर कुछ और लोगों की भी ये कंफ्यूजन रही होगी। आप अपलोड एक बारी में कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स, बट आप असाइन एक बारी में 40 ही कर पाएंगे। नहीं, वो तो क्लियर है कि असाइन तो हम 40 कर सकते हैं, मैम, लेकिन मुझे लगा कि जो लिस्ट में जैसे अभी 40 शो कर रहा था अनअसाइंड प्रोडक्ट्स में, आपके यहाँ पे 40 दिखा रहा था, तो मुझे लगा कि शायद 40 ही विजिबल होंगे, तो हमने वो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ 40 ही दिखा रहा है, बाकी के जो 60 रह जाएंगे वो हमें दोबारा से नेक्स्ट टाइम के लिए डालने पड़ेंगे दोबारा से। नहीं मैम, आप एक बारी में डाल दें और फिर आप ओवर द कोर्स ऑफ द बुक फेयर आप उसको चेंज कर सकते हैं असाइन अनअसाइन करके। ओके ओके, इट्स क्लियर नाउ सर, थैंक यू। जी मैम। सो लाइव वीडियो चैट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था। सो लाइव वीडियो चैट हमारा फंक्शन करता है गूगल मीट के थ्रू। सो क्या करना है आपको कि ये लाइव वीडियो चैट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसमें आपको यहाँ पर ये लाइव वीडियो चैट लिंक का एक टैब दिख रहा है। तो ऑल यू नीड गो टू meet.google.com। आप meet.google.com पर जाएंगे तो आपको ये न्यू मीटिंग का बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। सो इसमें लिखा आएगा क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर। आप ये सिंपल सा लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे। लिंक कॉपी करने के बाद आप वापसी आएंगे अपने स्टॉल पर और इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये लिंक पेस्ट करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ये लिंक सेव हो जाएगा एक लाइव वीडियो चैट का लिंक आपकी स्टॉल पर लाइव हो जाएगा। नाउ आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि सिंस ये लाइव वीडियो चैट है, सो एक बंदे को आपके तरफ से, सो समबडी वन पर्सन फ्रॉम योर टीम हैज़ टू बी लाइव ऑन दैट वीडियो चैट लिंक एट ऑल टाइम्स। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई लाइव वीडियो चैट पर आपसे चैट करने आए और वो आए और आप ना हो और वो चला जाए वापसी, क्योंकि ये लाइव वीडियो चैट लिंक है। सो एक इंसान को वहाँ पर लाइव रहना ही रहना पड़ेगा। सो एक बार ये लिंक सेव हो जाए तो हम वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ये लाइव वीडियो चैट लिंक हैज बीन एडेड। जी, ये लाइव वीडियो चैट के अलावा कैन वी पुट एनी नंबर और व्हाट्सएप नंबर सो दैट वी कैन बी एक्टिव ऑन ऑल टाइम्स? Is there any such option without live video chat, any number which is in WhatsApp so that we can be in chat always? मैम व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको फ्रंट एंड में दिखाया था, एक व्हाट्सएप का ऑप्शन है राइट, जिससे जो भी विजिटर आएगा वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर जा सकता है। सो मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद बैकएंड में भी दिखाता हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप का नंबर अपडेट कर सकते हैं अपना। Okay, and in this case, this live video, is it optional or we have to give it? मतलब तो देना मैम इट इज ऑप्शनल। अच्छा, ठीक है, ठीक। जी सर जो लाइव वीडियो चैट है इसमें सिर्फ जी मीट ही चलेगा या जूम भी और अदर ऑप्शंस भी चल सकते हैं? सर, जी मीट ही प्रेफरेबल रहता है सिंस दैट ओपन्स इन द ब्राउजर। अगर आप कोई और लिंक डालते हैं तो वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के साथ फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नो प्रॉब्लम सर, विल गो फॉर जी मीट आल्सो। जी मीट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है। सो वंस यू हैव डन दिस, हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। Yes, yes, please continue. All right. So once you have updated all this, just click on the update button. अपडेट बटन करने के बाद आपका स्टॉल अपडेट हो जाएगा एंड देन उसके बाद वी विल गो टू असाइन द स्टॉल एंड मेक इट लाइव। तो आपने प्रोडक्ट्स असाइन कर दिए, आपने सारे सोशल लिंक्स डाल दिए, आपने लाइव वीडियो चैट का लिंक डाल दिया इफ़ यू वांटेड टू पुट दैट। नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन टेक योर स्टॉल लाइव। तो उसके लिए आपको एग्जीबिशन स्टॉल्स पे क्लिक करना होगा। एग्जीबिशन स्टॉल्स के बाद आपको एग्जीबिशन इन्विटेशंस पर क्लिक करना होगा। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन एग्जीबिशन इन्विटेशंस। अब आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको इन्वाइट आया हुआ है राइट। अब इसके इन्वाइट के बाद ये मैनेज स्टॉल का बटन है जहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। सो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट स्टॉल का बटन दबाएंगे, इसमें आप अपना स्टॉल सेलेक्ट करेंगे जो आपने अभी क्रिएट किया है। इसके बाद आप अपना शिपिंग टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे जो आपने क्रिएट किया है एंड देन इसको आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करते हैं इवेंट में आपका स्टॉल लाइव हो जाएगा। अब चलते हैं जो और फीचर्स हैं स्टॉल के विच आर व्हाट्सएप और जो लिंक्स का फीचर है हमारे पास, और एक ऑडियो एक टेक्स्ट चैट वाला फीचर भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप बैकएंड से कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ। सो ये आपको ये सपोर्ट डिटेल्स का बटन इधर पे दिख रहा है, यहाँ पर अपडेट सपोर्ट डिटेल के नीचे आप इस सपोर्ट डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। सो आप इस व्हाट्सएप नंबर में जो भी आप अपना व्हाट्सएप नंबर स्टॉल पर रखना चाहते हैं वो अपडेट कर देंगे। वंस यू हैव अपडेटेड दिस, क्लिक ऑन सेव। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, लिंक पे कैसे जाना? स्टॉल लाइन आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अभी आ रही। हाँ आ रही है। जी। सर ये तो- स्टेप रिपीट कर दीजिए, कैसे आपने यहाँ तक पहुंचे? This one and the previous one also. तो स्टॉल वाले से मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक बारी दोबारा से। लेट मी जस्ट गो। जी तो अभी राइट नाउ मैंने एक 1 सेकेंड जस्ट, तो ये स्टॉल के नीचे अभी तो जैसे मैंने ऐसा कर दिया है तो मेरे स्टॉल का नाम दिखाई दे रहा है। अदरवाइज सेलेक्ट स्टॉल का ऑप्शन आता है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, राइट। सो आप उस पर क्लिक करेंगे, आप यहां से अपनी स्टॉल सेलेक्ट करेंगे और आप अपना माइग्रेटेड टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, या जो भी आपने टेम्पलेट बनाया होगा वो सेलेक्ट करेंगे। सर अगर टेम्पलेट नहीं बनाया तो अभी के लिए माइग्रेटेड टेम्पलेट कॉपी कर सकते हैं? जी सर, जैसे आप अगर आपने ये टेम्पलेट आपको बाद में बनाना है या फिर यू वांट टू टेक सम टाइम फॉर इट, तो आप जस्ट वहां पर जहां हम टेम्पलेट बना रहे थे माइग्रेटेड टेम्पलेट सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू करके उसको सेव कर दें, तो वो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जिसमें कोई शिपिंग प्राइस नहीं होएगा, बट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और बाद में एडिट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो आप ये सेलेक्ट करने के बाद सेव का बटन दबा दें और आपकी स्टॉल यहाँ पर लाइव हो जाएगा। वंस द स्टॉल इज, आपको मैं जी 1 मिनट डिस्टर्ब करूंगा आपको मैं। जी इसमें सर। जो हमने टेम्पलेट बनाया था जी और एक ऑलरेडी इसमें शिपिंग चार्जेस पड़ा हुआ है पिछले वाला, तो वो शिपिंग चार्जेस और ये नया टेम्पलेट जो हम बनाएंगे शिपिंग वाला, उसमें कोई जी। आपस में कोरिलेशन रहेगा क्या? हाँ, मैंने Zoom meeting है Oliver. नहीं सर, कोई इसमें कोरिलेशन नहीं रहेगा। ये शिपिंग चार्जेस एक्चुअली पुराना फीचर था जो इतना वायबल नहीं था, सिंस शिपिंग चार्जेस सिर्फ ये इसमें प्राइस बैंडेड वेरिएंट थे जैसे आप देख पा रहे हैं। जो इस बार का शिपिंग, इसमें कंप्लीट आपको प्राइस बैंडेड ऑप्शंस भी मिलेंगे, इसमें आपको पर वेट पर आइटम ये सब कुछ मिलता है, तो आप उसको रहने दीजिए। अगर कोई बना हुआ है जी, तो इससे आपस में कोई वो नहीं रहेगा ना, इसका कोई नहीं सर, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक, तो अब जैसे आपने अपना स्टॉल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सपोर्ट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाना है। आप सपोर्ट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर का कॉलम दिखेगा जहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। तो इधर मैं व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। इन केस आपका अगर यहाँ पर मोबाइल नंबर भी नहीं डाला हुआ है तो आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर दिया एंड आई विल क्लिक ऑन सेव। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा द बैकएंड विल टेक माय व्हाट्सएप नंबर, और जो मेरी स्टॉल का फ्रंट एंड है, आपकी स्टॉल का फ्रंट एंड है, उसके ऊपर व्हाट्सएप का बटन शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप दिल्ली बुक फेयर 2021 अपडेट सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो मीटिंग फीचर में, जिसमें आप वीडियो मीटिंग स्लॉट बना सकते हैं। जो ये आपका वीडियो मीटिंग स्लॉट का फीचर है, इसमें क्या रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वीडियो मीटिंग के स्लॉट्स बना सकते हैं अपने दिन के लिए। जैसे हमारा दिल्ली बुक फेयर 3, 4 और 5 तारीख को हो रहा है, तो लेट अस से कि 3 तारीख को आपको वीडियो मीटिंग्स के लिए स्लॉट्स बनाने हैं विजिटर्स के लिए। ये शेड्यूल्ड मीटिंग्स के लिए फीचर रहता है, ताकि अगर कोई विजिटर आपके पास आए और उसको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपसे मीटिंग करनी है, वो अभी राइट नाउ फ्री नहीं है, वो बाद में आना चाहता है आपसे मीटिंग करने के लिए, तो वो आपके ओपन स्लॉट्स देख सकता है, जिसमें वो आके आप वो क्लिक करके बुक कर सकता है स्लॉट, ताकि वो आपसे बाद में आके मीटिंग कर ले। तो हम फॉर एग्जांपल 3 तारीख का एक स्लॉट बनाते हैं अभी। तो इसमें सबसे पहले तो जो जाता है मीटिंग लिंक जाता है, ये मीटिंग लिंक जाएगा आपका गूगल मीट का। आप जैसे हमने पहले मीटिंग लिंक बनाया था गूगल मीट पे जाके, आप गूगल मीट पर जाएं, न्यू मीटिंग पे क्लिक करें, क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर पे क्लिक करें और आप यहाँ से लिंक कॉपी कर लें। लिंक कॉपी करने के बाद आप ये यहाँ पर पेस्ट कर दें लिंक पेस्ट करने के बाद
आप डेट सेलेक्ट कर लें किस डेट के लिए आपको बनाना है। आप तीनों डेट्स का भी बना सकते हैं, आप एक डेट का भी बना सकते हैं, आप 2 डेट का भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप ये सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं अभी 3 तारीख सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद आप अपना स्टार्टिंग टाइम सेलेक्ट करें। सपोज करें कि आप 11 बजे से अवेलेबल होना शुरू हुए हैं। 1 सेकंड। सपोज करें आप 11 बजे से अवेलेबल होना शुरू हुए हैं और आप शाम के 5 बजे तक अवेलेबल हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये टाइमिंग 24 आवर टाइम्स में जाएगा। तो अगर 5 बजे है तो दैट विल बी 1700 आवर्स। तो ये स्टार्ट टाइम और आप एंड टाइम डाल दें। अब इसके बाद आप ड्यूरेशन के स्लॉट्स बताएं। सो अगर आपको आधे घंटे के स्लॉट्स रखने हैं, आपको 15 मिनट के स्लॉट्स रखने हैं, आपको 1 घंटे के स्लॉट्स रखने हैं, आपको 45 मिनट के स्लॉट्स रखने हैं, आप वो ड्यूरेशन बता दें। तो जैसे अगर सपोज करिए कि मैं 1 घंटे का स्लॉट रखता हूँ और मेरा स्टार्ट टाइम 11 बजे है, एंड टाइम 5 बजे है। सो मेरे 6 स्लॉट बन जाएंगे विच विल बी 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। अगर मैं 15 मिनट के स्लॉट रखता हूँ या आधे घंटे के स्लॉट रखता हूँ तो सिमिलरली मेरे स्लॉट्स और उतने बढ़ जाएंगे। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये अपने वीडियो मीटिंग के स्लॉट्स कितने बड़े या कितने छोटे रखने हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट और 1 घंटा। सो अभी जैसे मैं यहाँ 1 घंटे के स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूँगा यहाँ पर मैसेज आएगा मेरे को, दिल्ली बुक फेयर 2021 अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब कोई भी इंसान अगर हमारी स्टॉल पर आएगा, कोई भी विजिटर हमारी स्टॉल पर आएगा तो वो देख पाएगा कि हमारे पास ये डेट पर ये वाले स्लॉट्स अवेलेबल हैं और वो उन पर क्लिक करके उनको बुक कर पाएगा। जैसे ही वो स्लॉट्स बुक करेगा आपके पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आएगा दैट दिस पर्सन हैज़ बुक्ड अ स्लॉट फॉर मीटिंग, और सिमिलरली उनके पास भी एक ईमेल जाएगा दैट दिस स्लॉट हैज़ बीन बुक्ड, और जो ये लिंक आपने यहाँ पर डाला होगा वो उनके पास भी चला जाएगा, आपके पास भी दोबारा आ जाएगा और टाइमिंग आ जाएगा ताकि आप उस टाइम पर ज्वाइन कर पाएँ उस मीटिंग को। सो इस तरीके से ये वीडियो मीटिंग स्लॉट्स वर्क करेंगे। स्लॉट ड्यूरेशन 60 मिनट्स है सर, वो दैट इज Sir? 1 आवर स्लॉट ड्यूरेशन। सर 15 मिनट है, आधा घंटा है, 45 मिनट से 1 आवर है, ये आपको डिसाइड करना है आपको कितनी देर के स्लॉट्स रखने हैं। ओके, दैट इज द अवेलेबिलिटी टाइम जो आपने 11 से 5 दिया है, दैट इज द अवेलेबिलिटी एंड दे कैन देन सिलेक्ट दिस ये पर्टिकुलर सपोज स्लॉट। मैंने आपको अभी 1 घंटे का एग्जांपल दिया। अगर आप जी। आधे घंटे के स्लॉट्स लेके चलते हैं तो और टाइम रहता है 11 से 5, तो आपके स्लॉट्स 11 से 11:30, 11:30 से 12, 12 ओके, से मतलब वो 12 स्लॉट्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। और इसमें एक चीज़ का प्लीज ध्यान रखिएगा, हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप सोचते हैं आपकी मीटिंग 25 मिनट की होगी तो आधे घंटे का स्टॉल रखिए, और अगर आपकी मीटिंग 40 मिनट की होगी 1 घंटे का स्टॉल रखिए, बिकॉज हर 2 मीटिंग के बीच में शायद एक थोड़ा सा ट्रांजिशन टाइम भी होगा, जब नया बंदा आएगा, आप उसको एंटर करने दें वो सब, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो 15 मिनट का स्लॉट तब रखिएगा अगर आपको लगे आपकी मीटिंग 10 मिनट की होगी, अगर 15 मिनट या 20 मिनट की होगी तो 30 मिनट का स्लॉट। अरे नमस्कार, लगा दिया टोनर, कैसे हैं आप? जी, इस तरीके से आप अपने वीडियो मीटिंग स्लॉट्स बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप्स की ओर। सो अब हमने ये सब सीख लिया। इसके अलावा जो एक फीचर आपके पास रह गया है अभी सीखना, वो है स्टॉल चैट का फीचर। तो स्टॉल चैट का फीचर बहुत क्रूशियल है। जितने भी विजिटर्स आते हैं जिनको टेक्स्ट चैट करनी होती है एग्जिबिटर के साथ, वो स्टॉल चैट पर ही चैट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अंडर अपडेट सपोर्ट डिटेल्स एक स्टॉल चैट का बटन है। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, अपनी स्टॉल आप फिक्स कर लेंगे, इसके बाद आप स्टॉल चैट पर जाएं। स्टॉल चैट पर जाने के बाद आपको ये बटन दिखाई दे रहा होगा जो येलो है। जब तक ये बटन येलो आप रखेंगे तब तक आपका स्टॉल पर बिजी दिखाई देता रहेगा और कोई आपसे चैट नहीं कर पाएगा। सो आपको स्टॉल सेटअप करने के बाद इस बटन को क्लिक करके ग्रीन कर देना है। तो जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा आप स्टॉल पर अवेलेबल हो जाएंगे एंड एनीबडी कैन कम, और वो आपके साथ चैटिंग कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवेंट आपको ये बैकएंड में लॉगिन रहना पड़ेगा। समबडी फ्रॉम योर टीम हैज़ टू बी लॉगिन फ्रॉम द बैकएंड एंड हैज़ टू मॉनिटर दीज चैट्स कि कब कोई आपसे आके बात कर रहा है, ताकि आप उसको पर्टिकुलर टाइम पर रिस्पॉन्ड कर पाएँ। इसके बाद जो एक और फीचर रह जाता है वो रह जाता है मैनेज यूजर्स का फीचर। मैनेज यूजर्स का फीचर आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा। तो जैसे सपोज करें कि आपको 1 या 2 यूजर और ऐड करने हैं अपनी स्टॉल में, जो स्टॉल मैनेज करेंगे या स्टॉल के थ्रू चैट करेंगे, तो आप यहाँ मैनेज यूजर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे। क्रिएट यूजर पे क्लिक करने के बाद आप
इनका टाइटल डालेंगे, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, प्रोफेसर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट। देन आप उनका नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम उनका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ये ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे उनको इनवाइट जाएगा। सो लेट्स से ये है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप उनका सब रोल सेलेक्ट करेंगे। सो एडमिन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, वॉट एवर यू वांट टू सेलेक्ट। आप इट विल बी बेनिफिशियल दैट आप मैनेजर या एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करें क्योंकि एडमिन में उनको सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं। तो लेट्स से हम मैनेजर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप अपलोड करना चाहें तो उनकी एक प्रोफाइल पिक्चर, एक प्रोफाइल इमेज अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर 100 बाय 100 पिक्सल्स की। सो जैसे मैं यहाँ पर एक 100 बाय 100 पिक्सल्स की इमेज अपलोड कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सो वंस यू हैव सेव्ड दिस, जो आप ईमेल आईडी इधर आपने डाली होगी उस ईमेल आईडी पर एक इनवाइट चला जाएगा उस यूज़र को। दे कैन कम इन, क्रिएट देयर पासवर्ड, और वो भी आपकी स्टॉल पर चैट एंड एवरीथिंग ऑपरेट कर पाएंगे फ्रॉम द बैक एंड। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट मोर यूजर्स। इस तरीके से आप एक या दो लोग और मैक्सिमम 2 मोर पीपल कैन कम। सो टोटल 3 लोग आप रह सकते हो स्टॉल पे, एक जिसने स्टॉल बनाया है और 2 एडिशनल यूजर्स जो आप यहाँ क्रिएट यूजर के ऑप्शन से क्रिएट कर पाएंगे। सो ये था पूरा स्टॉल क्रिएट करने का तरीका। मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिया है। नाउ अब किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मेरे को बताएं। ये जो पूरी वीडियो है, जो पूरा ट्रेनिंग सेशन है, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। हम इसको वंस द वेबिनार इज एंडेड हम इसको आपके साथ शेयर कर देंगे ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। इसके अलावा भी कुछ ट्रेनिंग वीडियोस के लिंक्स हैं जो हमने आपके साथ पहले भी शेयर करे थे, वो हम दोबारा शेयर कर देंगे। वो भी सेम ही ट्रेनिंग वीडियोस हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि वो कंप्लीटली इंग्लिश में है। सो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जौन सी भी वीडियोस, ये वाली ट्रेनिंग वीडियो यूज़ करनी है या दूसरी वाली ट्रेनिंग वीडियोस यूज़ करनी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हमने एक पूरी टीम रख रखी है जिसके फ़ोन नंबर्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड हैं। तो आपको स्टॉल क्रिएशन के वक्त कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू डेज दिल्ली बुक फेयर से पहले, सो हमारी टीम ऑलरेडी रेडी है आपके सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। बाकी यू हैव एनी क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट, अगर आपको इस टाइम पर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज विजिटर्स कार्ड क्रिएट कर सकते हैं हम। 1 सेकेंड प्लीज, आप प्लीज 1 बाय 1 मेरे सारे क्वेश्चंस आज करें। यस मैम, आप कुछ बोल रहे थे? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि हम कब स्टॉल क्रिएट कर सकते हैं अपना? मैम आप स्टॉल बिल्कुल अभी क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास इनवाइट शेयर हो गया है मैम? आई थिंक हो गया होगा मैम आपके साथ इनवाइट्स अगर इफ यू साइंड अप बिफोर दिस मंडे तो आपके साथ इनवाइट्स मंडे को ही शेयर हो गए थे मैम। ओके, मतलब शेयर हो चुके हैं, बस हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? ओके जी मैम, बिल्कुल आप कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 डेज, मतलब 30 या 30th तारीख तक हम सब लोग अपने स्टॉल्स बना लें ताकि प्रगति टीम भी एक बार अपनी तरफ से R&D कर पाए और देख पाए कि किसी की स्टॉल में अगर कुछ कमी है तो हम लोग आपको सजेस्ट कर पाएँ कि प्लीज़ आप ये चीज़ भी बना लें। क्योंकि अगर हम उसको लास्ट डे तक खींच के चलेंगे तो हो सकता है कि हम लोग भी कुछ मिस कर जाएं आपकी स्टॉल में देखना। तो इसलिए वी वुड सजेस्ट कि आप 30 तारीख तक उसको क्रिएट कर लें ताकि हम भी अपनी तरफ से सारी चीज़ें देख पाएँ। हमारी टीम चेक करती रहती है कि कितनी स्टॉल्स बन रही हैं, क्या चीज़ें जा रही हैं, क्या बैनर्स जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है। ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस हमारे एंड से चलता रहता है, बट इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल अगर आप लोग ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 3-4 डेज अपनी स्टॉल्स कंप्लीट कर लें ताकि हम दिल्ली बुक फेयर के लिए रेडी रहें। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। और विजिटर कार्ड के बारे में पूछ रहा था मैं। जी सर, जी सर बोले। विजिटर कार्ड जो है ना, उसका एक बार क्रिएशन बता देते हैं। विजिटर कार्ड हम कैसे ऐड कर सकते हैं? सर जो विजिटर कार्ड रहता है, आपको देखो यहाँ पर भी ऑप्शन दिख रहा है विजिटर कार्ड का, तो ये यहाँ पर आता है कार्ड्स एक्सचेंज बाय विजिटर। तो कोई अगर विजिटर, जैसे मैं आता हूँ और मैं आपके साथ आके कार्ड एक्सचेंज करता हूँ तो उसके कार्ड यहाँ पर आपको शो होंगे, जो द लीड जो आएगी आपको उसके कार्ड यहाँ पर शो होते हैं। बट जो आपका अपना विजिटर कार्ड है ना सर, हाँ जी, जो आपका अपना विजिटर कार्ड है, जैसे आप अपनी एग्जीबिटर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जो स्टार्टिंग का सबसे पहला स्टेप था, हाँ जी, में आप अपना नाम डालते हैं, फोन नंबर डालते हैं, वेबसाइट डालते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं, वही डिटेल्स लेके आपका विजिटर कार्ड क्रिएट हो जाता है अपने आप। अच्छा अच्छा जी, तो वो शो तो नहीं हो रहा क्योंकि हमने तो डाल रखी सारी चीजें, लेकिन विजिटर कार्ड शो नहीं हो रहा है हमारे पे। सर आपका स्टॉल जब लाइव हो जाएगा, एक बारी आपको प्रीव्यू दिख जाएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आपका विजिटर कार्ड वहां पर शो हो रहा होगा। अभी राइट नाउ प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है,
तो जैसे ही आपको प्रीव्यू अवेलेबल हो जाएगा आपको वो दिख जाएगा आपका विजिटर कार्ड। ठीक है सर। जी सर। I have one query. Actually, मैं जो हूँ मैं भारती भवन की तरफ से हूँ, but the email IDs and all the mails are going to my management. तो ये क्या हो सकता है ऑप्शनल, क्या कोई मैं मेल आईडी आप लोगों को भेज सकती हूँ जहाँ पे ये रिकॉर्डेड वीडियोस और सारा कुछ मुझे मिले? मैम आप हमको ईमेल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, हम आपको मेक श्योर करेंगे कि इन्फॉर्मेशन चली जाए। ओके, एंड आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चन, जैसे कि इज इट अ B2B और B2C? मैम ये B2C इवेंट रहेगा, विजिटर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब विल विजिट दिस इवेंट। ओके, एंड जी। हम मतलब आपने तो दिखाया है कि कैसे हम लोग सेल करेंगे, तो व्हेन अ कस्टमर इज कमिंग सो व्हाट वी विल बी व्हाट वी विल बी सीइंग, कि जब वो आएंगे उनके स्टॉल दिखेगा उनको, फिर वो आके एंट्री करेंगे, वो कैसे होगा? How will it सबसे play पहले out? जब वो आएंगे तो उनको एग्जीबिशन हॉल दिखाई देगा, सबसे पहले जब वो आएंगे उनको लॉबी दिखाई देगा, लॉबी दिखाई देने के बाद उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे एग्जीबिशन हॉल में जाने के, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में जाने के या नेटवर्किंग लाउंज में जाने के। तो जैसे ही वो एग्जीबिशन हॉल में आएंगे, एग्जीबिशन हॉल में आने के बाद उनको कैटेगरीज दिखाई देंगी, कैटेगरीज में जितनी भी हमारी 12-13 कैटेगरीज हैं वो सारी कैटेगरीज का डिपिक्शन होगा। उसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएंगे तो उस पर्टिकुलर कैटेगरीज में जो स्टॉल्स लिस्टेड होंगी वो स्टॉल्स उनको दिखाई देंगी। इसके अलावा एक ऑप्शन वो भी रहेगा जिसमें उनको सारी स्टॉल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी दिखाई देंगी। और मैडम एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि आप जो विजिटर को अपना कोई भी आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अगर आप शेयर करेंगे तो आप स्पेसिफिक अपने स्टॉल का शेयर करिए, जिससे वो सीधा आपके स्टॉल पे आए और उसके बाद में जहाँ जाना चाहे किसी और जगह पे तो जा पाए। मेरा कांटेक्ट मतलब मेरा नंबर वो आप बोल रहे हैं क्या? नहीं मैम, आपका नंबर नहीं शेयर करोगे आप, जो स्टॉल का जो लिंक है, जो स्लग मैंने आपको अभी समझाया था ट्यूटोरियल के अंदर, जो स्लग है, स्लग के साथ जो लिंक बनाएगा वो आप शेयर करेंगे और उससे जो भी आपके विजिटर्स हैं वो डायरेक्टली आपकी स्टॉल पर लैंड कर पाएंगे। जी। फाइनली एक बार आपका जो जो सपोर्ट कॉन्टैक्ट है थोड़ा एक बार ग्रुप पे डाल देना नंबर्स। जी सर, मैं दोबारा से सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स के नंबर्स ग्रुप पर डलवा देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके। But I am not in the group. Can I add my number there? Is it any possible? Is there any मैम possibility? आप एक बार यहाँ चैट पे आप नंबर दे दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। जी। Geo chat पे, okay. Okay, one more question. Total 40 titles we can upload in the stall, right? मैम दैट इज द जो बेसिक स्टॉल है उसमें 40 टाइटल्स हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा टाइटल्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करिए। देयर विल बी एन एडिशनल कॉस्ट, तो उसका एक एडिशनल कॉस्ट होगा, बट हम आपको उसका एडिशनल कॉस्ट का पैकेज भी दे देंगे। सो लिमिटेड प्रोडक्ट में कोई लिमिट, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई लिमिटेशन नहीं है, मगर जो स्टैंडर्ड पैकेज है उस स्टैंडर्ड पैकेज में 40 टाइटल्स ही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ा स्टॉल लिया है तो उनके पास में 40 से ज़्यादा टाइटल हैं, जितने आपने लिए हैं उतने ही आपको वहाँ मिलेंगे। अच्छा, okay. And last question, what will be the timing of the fair? क्या टाइम रहेगा सुबह? मैम बिकॉज दिस इज वर्चुअल, एक तरह से टाइमिंग फॉर द विजिटर विल बी 24/7। Okay, so for the 3 days, we are actually looking at taking it live at 10 o'clock in the morning on 3rd. तो 3 तारीख को 10 बजे सुबह हम इसको लाइव करेंगे और 5 तारीख को रात तक वो लाइव रहेगा। Okay. Thank you so much. ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई और सवाल? मैम आप जो नंबर भी शेयर कर दीजिए चैट में। हीरो बैनर्स का जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है वो जी सर। हीरो बैनर्स कहाँ पे डिस्प्ले होंगे? मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया था वो स्टॉल के सेकंड पेज पे डिस्प्ले होता है। मैं आपको अच्छा, वही वाला है हेडर जी। बैनर जिसे आप कह रहे हैं। ओके ओके। I will request if you can provide a number of your person. बना चुके हैं सर। स्टॉल कब क्रिएट करने कह रहे हैं? वो तो स्टॉल क्रिएट करने के लिए तो 1 हफ्ते पहले लिंक भेज ही दिया। बोलने की तो हो गया खत्म। हेलो। Hello, I am saying that आप लोग की तरफ से जो रहेंगे to assist us, if you can share the number in the chat. मैडम वो सपोर्ट के नंबर हम आपको अभी शेयर कर देंगे चैट में। Okay, okay. बेटा सपोर्ट करते सवाल कर रहे होंगे बिल्कुल नहीं सीखता।
छोड़ो हेलो हेलो जी हेलो हैज एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज पूछ ले। और हेलो इसके भी कोई और क्वेश्चन होगा तो आप उस ग्रुप पे पूछ सकते हैं और हम वहां पर जवाब दे देंगे। हेलो हेलो sir, my question was regarding the shipping charges. Like, who will be providing the shipping? Either it will be a self ship or you will be providing the shipping. सर वैसे तो सेल्फ शिप है। अगर आपको शिपिंग से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए तो आप प्लीज सेपरेटली शरद से कांटेक्ट करिए सो दैट हम जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर हैं हम उनसे आपको कनेक्ट करवा पाए। ओके सर, मतलब सेल्फ शिप हो जाएगा ना? हाँ बोल दे। हाँ राहुल और सबको एक बार ले लूंगा कि बिना पूछे कहीं फोन नहीं करेगा। हाँ इफ एनीबॉडी हैज एनी मोर क्वेश्चंस, अगर किसी को कोई और सवाल हैं तो प्लीज पूछ लें। वो योगी तो आएंगे, वो मतलब पिकअप जो होंगे वो फेयर के बाद होंगे, और उसमें जो अपने शिपिंग वाले हैं वो टाई अप कर रखे हैं ऑलरेडी, वही लेने आएंगे या क्या रहेगा? हमने अपने एंड से भिजवाने हैं। सर आप अपनी तरफ से शिप करते हैं, आप अपनी तरफ से शिप करिए, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास में ऑर्डर प्लेस करते ही आ जाएगा, आप उसको साथ उसी दिन में भेजिए चाहे। दूसरा ऑप्शन है, आप अगर आप में से कोई ऐसा एग्जिबिटर, कोई ऐसा पब्लिशर है जिसके पास में अपनी शिपिंग की B2C कैपेबिलिटी है ही नहीं और उसको सपोर्ट चाहिए, तो आप अलग से हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको अपने लॉजिस्टिक्स पार्टनर से कनेक्ट करेंगे। मगर जो अपने आप शिप कर सकते हैं प्लीज अपने लीजिए, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। सर इसके अलावा भी अगर किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज हमसे ग्रुप पे पूछ लीजिए या फिर शरद को कांटेक्ट कर लीजिए एंड हम उन सारे सवालों का जवाब देके इंश्योर करेंगे कि आपका इस बुक फेयर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। इसी के साथ हम लोग इस ट्रेनिंग सेशन के एंड पे आ गए हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज ग्रुप पे पूछ लीजिए और हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you.